Very good evening to all of you. So we are live now. So how was your weekend? Good, good, good. I am. How was your weekend? Wonderful, wonderful. Good evening, good evening. Good. Mine was awesome. Let me read some chat. It's great. It was awesome. How have you been? I've been great. I've been great. Lovely. Good, 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 good. I have been great. Good evening, good evening, good evening. Good evening, Daneshwar. Great. So let us begin our webinar. And before starting, I just need to ask a couple of questions with all of you. So first of all, begin with our session so you can get all the ideas. So I need complete undivided attention from your end. Keep your pen and paper handy. And if you have any question, do ask me after the webinar. And those who will be listening this or watching this webinar in the recorded format, I request you to complete the webinar in one go. Okay. So before starting today's session, I just want to know, because I have been receiving so many messages on Instagram as well, that people started improving. They started speaking single sentences in a very great way. They are not committing any mistake. They write good words. That's your teaching methodology is quite good. So it always gives me immense happiness. Reason क्या है? खुशी मुझे क्यों मिलती है कि वो लोग अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं? No. The main thing or the thing which gives me happiness, because the way they started messaging me on Instagram, सबसे अच्छी चीज है उनकी जो सेंटेंसेस लिखते हैं उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम होना शुरू हो गई है. राइट कि पहले जहाँ पे गलती करते थे, अब वो जो सेंटेंसेस लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही से निकलते जा रहे हैं. अब मुझे ये पूछना है कि दोज हु हैव बीन टेकिंग ट्रेनिंग फॉर सो मेनी डेज, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट चैलेंजेस यू आर फेसिंग. अभी आप लोगों को क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं. सो फॉर 5 or 10 minutes वी विल बी डिस्कसिंग एंड आई विल बी गिविंग यू सम रिजोल्यूशंस. दोज हु हैव जॉइंड अस today for the first time, no need to worry about that. You will be getting recording by tomorrow. आप लोगों को कल सबकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. इसके अलावा भी आपकी जो जो प्रॉब्लम है, द पीपल हु आर फेसिंग प्रॉब्लम्स कि सर हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं, डू आस्क मी एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देन एंड देयर ओनली. ओके. कोई भी प्रॉब्लम हो आपका कम्युनिकेशन, रिक्वेस्ट यू टू गिव सम मोर एग्जांपल ऑफ सपोज टू इंटेंशन, पर्पस एंड पीपल्स ओपिनियन. Request you to give some more example of supposed to, intention, purpose and people's opinion. Okay, Samir, will it be fine if I give example after 10:30? Okay, if it is possible, or otherwise after 1 or 2 minutes I will try to give 1 or 2 examples. ठीक है जो. okay, great. Thank you. क्योंकि जिन जिन क्या आप लोगों का पर्सनल डाउट आएगा ना कि सर मुझे, अभी मैं बात कर रहा हूँ आपकी जनरल प्रॉब्लम की, व्हाट यू आर फेसिंग इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग. You have been watching and listening all the recording but still you face some challenges. Okay sir, this is the place where I get stuck, या फिर यहाँ वाले sentences में मुझे दिक्कत आ रही है. I would love to answer. या फिर घर में माहौल नहीं मिल पा रहा, वीडियोस बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, डू आस्क मी. ठीक है, क्योंकि द थिंग विच वी कांट मेजर वी कांट इम्प्रूव. अगर हम लोग किसी चीज को मेजर ही नहीं कर पाएंगे तो हम लोग इम्प्रूव ही नहीं कर सकते. एंड हु इज द बेंचमार्क? ऑब्वियसली यू. अब आप लोग बेंचमार्क कब होगे? जब व्हेन यू मेक वन वीडियो, tomorrow you will make another, day after tomorrow third videos. Okay. Shiromani Dhar Divedi, please don't raise your hand. Do you have any question? Do ask me into the chat box only. आप सीधा chat box में पूछ लीजिए. आप लोगों के जितने भी questions हैं वो सारे के सारे confidential रहेंगे, so no need to worry about that. Okay. जो भी आपका प्रॉब्लम है यू मे राइट डाउन कि सर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. आप लोगों का प्रॉब्लम सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, सो यू कैन आस्क मी कि सर अभी थॉट्स हम लोगों का हिंदी में आ रहा है या फिर कोई भी जो भी आपका इशू आ रहा है. क्योंकि अच्छी चीजें तो मुझे अच्छी चीजें सुनने की आदत नहीं है. राइट, आई जस्ट वांट टू लिसन कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है. ओके, नो इशू. These are the facing below point. Good. Sentence making, speaking, writing some issue in mails. Word remember not proper. Let me share all the issues what person has been facing right now. And please one more thing, right? I'm just telling you one thing. Let me share all the queries. Okay. All panelists and attendees. Let me share it into the displays as well, ताकि आप लोगों को पूरा idea मिल जाए. Good. These are facing below points. Okay. First, sentence making. Second one below is speaking. Third point is
writing issues, some issue in emails, and fourth one is वर्ड्स रिमेंबर नॉट प्रॉपर। देखिए हम लोग शुरू करते हैं पहली बात तो वर्ड्स से लेकर। वर्ड्स का मैंने आप लोगों को याद करने का तरीका बताया है। पहली बात तो आप ये खोल के बैठे होंगे कि ओके ओके दीज 10 वर्ड्स आई हैव टू रिमेंबर, दीज थिंग्स विल नेवर वर्क। जैसे हम लोग हर दिन एक वोकैबुलरी डिस्कस करते हैं। दोज पीपल हु हैव जॉइंड अस टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम टेलिंग यू कि हम लोग वोकैबुलरी रखते हैं। हर दिन हम लोग एक एक वर्ड को डिस्कस करते हैं और उसके ऊपर हम लोग सिनोनिम्स और उसको कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। वर्ड्स रिमेंबर नॉट प्रॉपर। अब आप अगर यदि एक अच्छी वोकैबुलरी की बात कर रहे हो या फिर अगर यदि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, पहला कि आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स याद नहीं हो रहे, जो वोकैबुलरी का प्रॉब्लम है, वो तो कंटिन्यू ये होगा कि आप जितना उनको कंटिन्यू यूज करते जाओगे। जैसे इफ आई टॉक अबाउट द प्रीवियस क्लास वर्ड, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि क्या वर्ड हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में दिया था, वी विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम। जैसे कोई वर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया जैसे कैमराडरी। अब कैमराडरी वर्ड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो लोगों को याद नहीं है आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, आप उसमें एक बार देख सकते हो। अब कैमराडरी जैसे वर्ड्स होते हैं, इनको आप यूज कैसे करोगे? जब तक आप इनको अपनी डेली लाइफ में कम से कम 10 से 15 बार नहीं बोल लोगे, तब तक ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठेंगे। एक बार अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया, उसके बाद ये चीजें आपकी ईमेल्स हो गया, चाहे आपका स्पीकिंग हो गया, ये सब चीजें आपकी हेल्प करेंगी। बिकॉज आई नो द पर्सन हु रोट दिस प्रॉब्लम, द पर्सन हैज बीन इनटू द सेल्स। अब जिन्होंने ये प्रॉब्लम लिखी है, बिकॉज आई रिमेंबर आप लोगों ने शायद पहले बात हुई थी, आप लोगों ने चैट में लिखा था कि यू हैव बीन इनटू द सेल्स प्रोफेशन। अब आप सेल्स प्रोफेशन में है। सेल्स प्रोफेशन वालों के लिए सपोज कीजिए एक वर्ड आता है जहाँ पे कैमराडरी, दिस वर्ड है। अब ये वर्ड आप कहाँ पे यूज कर सकते हो? अपने सपोज कीजिए आप अपनी कोई प्रोस्पेक्ट कोई ईमेल लिख रहे हो, प्रोस्पेक्ट को आपने ईमेल लिखा, आपने सारी बातें लिखी और उसके बाद आप लिख सकते हो कि आई होप इट builds a wonderful camaraderie between us या फिर between our organizations। अगर B2B में बिजनेस करते हैं तो आप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करके कोई भी लाइन आप लोग लिख सकते हो। अब ये चीज क्या हो गया, ये वर्ड आपके दिमाग में कैसा आएगा? डोंट थिंक कि आज मैं ये ईमेल लिखूंगा तो उसके अंदर मैं कैमराडरी वर्ड यूज करूंगा, इट विल नेवर हैपन। ये सब चीजें कैसी आएंगी? सबकॉन्शियसली आएगी। वंस यू स्टार्ट राइटिंग, वंस यू स्टार्ट यूजिंग ऑल दीज वर्ड्स इन योर डेली लाइफ। अब दूसरी बात आती है, एक पॉसिबिलिटी तो आपकी ये कि आपको वर्ड याद नहीं होते। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि अच्छे वर्ड्स याद नहीं होते, मुझे तो अभी बेसिक वर्ड्स में ही दिक्कत आ रही है, मैं तो अभी छोटी छोटी चीजों में अटक जाता हूँ। जैसे मुझे बोलना है कि इन्फॉर्म जैसा वर्ड है, इन्फॉर्म तो फिर भी बहुत चलो छोटा वर्ड आ गया। कोई और वर्ड हम लोग सोचते हैं कि मुझे लिखना है कि कोई भी एक वर्ड का एग्जांपल लेते हैं जो बिल्कुल बेसिक वर्ड है, जो आप लोगों के डेली लाइफ में काम आता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपको पाथ समझ में नहीं आ रहा, लेट मी चेक इफ समवन गिव मी सम आइडिया। Okay, you are talking about the good words. Okay, so if you are talking about the good words, वो good words सर ऐसे ही हेल्प करेंगे जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आज आप लोगों ने जैसे आज हम लोग एक वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे, उस वर्ड को आप शूट कर दो। कहाँ पे शूट कर सकते हो? मेक इट योर व्हाट्सएप स्टेटस। आप चाहो तो उसको आप अपना वर्ड ऑफ द डे अपने अगर यदि आपकी फैमिली है, आप फैमिली में अपने किड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। अगर आप अपने ब्रदर सिस्टर के साथ डिस्कस करते हो, चाहे उनको समझ में आता है या नहीं आता है, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, ये आपका मतलब नहीं है। आप लोगों को तो कंटिन्यू ये वर्ड्स याद रखने हैं। एंड मार्क माय वर्ड्स, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। जैसे एक वर्ड है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं एक वर्ड, एंड यू विल गेट एस्टोनिश्ड टू नो। एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है? एस्टिग्मेटिज्म एक ये वर्ड है। अब आपके सामने ये एक जीता रहता एग्जाम्पल मैं अपने बारे में दे रहा हूं, तो यू विल डेफिनेटली you can relate कि what exactly happened with me, how did I learn vocabulary। अब एक वर्ड एस्टिग्मेटिज्म आ गया। ये वर्ड मैंने एक स्टोरी बनाया था अपने ऊपर, ठीक है? एंड व्हेन आई वाज इन क्लास 4 और क्लास 5, क्लास और 4-5 में मुझे अभी तक ये स्टोरी भी याद है कि मैंने किस स्टोरी से इस वर्ड को याद किया था। अब ध्यान रखना, मैंने आपको निमोनिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने बताया था कि वोकैबुलरी बिल्डिंग का तरीका क्या होता है। आपको हर वर्ड के पीछे एक स्टोरी बना लो। अब स्टोरी आप कैसे बना सकते हो? यू कैन प्रैक्टिस दिस वर्ड विद योर फैमिली मेंबर्स, यू कैन मेक इट एज अ स्टेटस। आप चाहो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ मैसेज में यूज कर लो। तो सर हम लोग रोज मैसेज में यूज करेंगे? नो। जैसे आज एक वर्ड सीखा ना, इसको 1 या 2 दिन तक कंटिन्यू सेंटेंस बना लो, डन। उसके बाद ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो गया ना, एंड मार्क माय वर्ड्स, ये चीजें आपके हिसाब से अपनी मेल में भी यूज होंगी और आपके डेली कम्युनिकेशन में भी जाएगा। वोकैबुलरी को आप सिर्फ याद करने के हिसाब से मत करो कि आज मुझे ये वाला वर्ड याद करना है। स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स इन योर डेली कम्युनिकेशन। ओके, लेट मी चेक।
people started writing their problems. I will take, let me complete the all the problem what person asked. Okay, okay, just you can write down, अभी आप लिखते रहो ताकि मैं, और हो सकता है आप लोगों की प्रॉब्लम कॉमन ही निकले. दूसरा है सेंटेंस मेकिंग में. सेंटेंस मेकिंग का मैंने आपको तरीका यही बताया है कि पहली बात तो ध्यान रखना, अगर आपका स्पीकिंग अच्छा हो गया ना, सेंटेंस मेकिंग तो आपकी जाएगी. सेंटेंस मेकिंग का मतलब क्या होता है, चाहे आप उसको ईमेल राइटिंग में रख रहे हो या फिर नॉर्मल बोल रहे हो, ऑलवेज 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 राइट, क्रिएट द स्टोरी. ध्यान रखना, स्टोरीज में से सिचुएशन ज्यादा नहीं होती. आज अगर आप हिंदी में भी बातचीत करते हो तो ज्यादा सिचुएशन, आप यानी सिचुएशन का मतलब है ज्यादा स्टेट नहीं होती. स्टेट 3 स्टेट ही होंगी, या तो प्रेजेंट की होगी, या पास्ट की होगी, या फ्यूचर की होगी. अब उसमें क्या होगा, अगर आपने एक कॉन्टेक्स्ट के बीच में, जैसे जस्ट टेक माय एग्जांपल, व्हेनेवर आई टीच, क्या बोला मैंने, व्हेनेवर आई टीच. मैंने क्या बोला, व्हेनेवर आई टीच इज नो. मैंने बोला व्हेनेवर आई एम टीचिंग, नो. क्या है, दिस इज माय डेली रूटीन, दिस इज माय डेली प्रैक्टिस. इन दैट केस आई, देयर इज नो एस और ईएस. अब ये क्या चीजें मुझे हमेशा बोलते हो याद रखने की जरूरत है, नहीं. तो आप लोगों ने जब ये चीजें पढ़ी हैं, आप लोग, तभी मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जो भी आप एक लेक्चर पढ़ते हो ना, उसमें हर लेक्चर के ऊपर कोई ना कोई एक सेंटेंस में एक स्टोरी होती है. उस स्टोरी को आप लोग एक बार पढ़ो, उसके बाद आप स्टोरीज को अपनी लाइफ से रिलेट करके बना लो. डन. तभी आपके छोटे छोटे सेंटेंसेस बनना शुरू होंगे. अदरवाइज जो भी चीजें मैं पढ़ाता हूँ, ये जो आपको एक फॉर्मूले देता हूँ, यू कैन इजीली फाइंड आउट. ये फॉर्मूले पढ़ाने के लिए आप लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है कि इज आर एम आई एन जी लगता है, एस और ई एस लगता है. वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द स्टोरीज, द कॉन्टेक्स्ट. पहला, इस लेक्चर के अंदर जो मैं चीजें बताता हूँ वो किससे रिलेटेड होती है, वो होती है मैंने लेक्चर्स बनाते वक्त जो मेरे पास दिमाग में चीजें आती हैं, स्टोरीज आती है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. उसके बाद जब आप इनकी रिकॉर्डिंग्स को सुनोगे नेक्स्ट डे, अब आप उसके बाद मेरी स्टोरीज आपके साथ होंगी, उसके साथ आप अपनी स्टोरीज को लिंक करो. यू कैन मेक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस, और नेक्स्ट डे मुझसे पूछ लो कि सर ये वाला स्टोरी मैंने सोचा था, इज इट फिट हियर, यहाँ पे ये चीज सही बैठती या नहीं बैठती, एंड आई विल आंसर योर क्वेरी. ओके. राइटिंग इश्यूज इन ईमेल्स, मैंने आपको बताया. पहली बात तो ईमेल में आप जो जो चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूं ना, वो आप करते रहो. उसके बाद ईमेल राइटिंग का तो मैं एक पूरा सेशन लूंगा, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे सैल्यूटेशन यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या वर्ड यूज करने, ईमेल में इंट्रोडक्शन पार्ट कहाँ पे आता है, कहाँ पे आपको अपना पिचिंग करनी है प्रोडक्ट या सर्विसेज की, या फिर आप अपने बॉस को मेल लिख रहे हैं तो, या फिर आप जॉब के लिए ईमेल लिख रहे हैं तो, उन सब के मैं पूरे की पूरे आपको फॉर्मेट बताऊंगा. नो नीड टू वरी अबाउट दैट. बट इफ यू आर फेसिंग चैलेंजेस in terms of making sentences, so the best way is always make sentences according to the context, according to the stories, what you realize, not realizes, not realizing. क्यों? आप हमेशा ही रियलाइज करते हो. पैटर्न बन गया. ओके, ग्रेट. So I hope I answered your query. Let me take one more question when I write the email, but I'm not sure that is it right or wrong. Lack of confidence. Good. One problem again came here. Let me take this question as well. When I write the email, but I'm not sure that is right or wrong. Lack of confidence. Sir, confidence इसलिए आता है कि आपका मेन चीज, पहले मैं आपको कॉन्फिडेंस की बात करता हूँ. कॉन्फिडेंस तब आपका सही होगा जब आप बोलना शुरू करोगे. ध्यान रखना, LSRW के अंदर स्पीकिंग की बहुत ज्यादा वैल्यू है. तो क्या LSRW में हम लोग LSW को LRW को छोड़ सकते हैं? नो, एब्सोल्युटली नॉट. लेकिन आपको कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता अभी इस टाइम पे क्योंकि आप लोगों ने अभी कंटिन्यू बोलना शुरू नहीं किया. ठीक है. आई जस्ट वांट टू आस्क हाउ मेनी वीडियोस यू हैव मेड. ठीक है, जिन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, यू कैन सिंपली आंसर मी इन द चैट बॉक्स. ठीक है, आप चैट में बता दीजिए. आप अगर यदि, क्योंकि जब तक आप बोलना नहीं शुरू करोगे तब तक आपका सेंटेंस फॉर्मेशन में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. उसके अलावा मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी अगर यदि फ्लुएंसी बोलने में आ गई तो सेंटेंसेस आपके एक्यूरेट बनेंगे, बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द सेंटेंस फॉर्मेशन, जहां पे एक्यूरेट चीजें कहां पे क्या क्या यूज होता है, कहां कहां पे हम लोग उस चीज को प्रयोग करते हैं. दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो आपने अभी ईमेल वाली बात बोली, ईमेल का मैं आपको पूरा का पूरा एक प्रोसेस बताऊंगा, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, आप अगर यदि कोई भी यूज कर रहे हो सॉफ्टवेयर, सो यू कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर Grammarly. Okay, this is a wonderful tool which helps you कि where you commit mistakes, जहां पे आपका ग्रामर की प्रॉब्लम आ रही है. मुझे नहीं लगता अब ग्रामर की प्रॉब्लम आप लोगों के साथ आनी चाहिए. ठीक है, Grammarly एक ऐसा टूल है which enhances your writing. वो राइटिंग को आपको अच्छा करता है. ठीक है, बेसिक राइटिंग में आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग अब सेंटेंसेस बनाना शुरू करोगे, बट प्लीज 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 start making videos. Those who have already started making videos, these guys will definitely get results. Let me check the answer. Nowadays I am attending so many webinar and training session. Before some days ago I didn't ask question to resource person, but now I have been starting. Thanks sir. Wonderful.
love it, right? Let me share this thing. Nowadays, I am attending so many webinars and training sessions. Before some days ago, I didn't ask questions to resource person, but now I have been starting. Thanks, sir. Good, good. I really appreciate because you wrote nice words. But the thing is that यहाँ पे हम लोगों को कुछ चीजों पे ध्यान देना है. Those who have attended my class, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ. Just this. ठीक है. When person wrote nowadays, I am attending so many webinars. What does it mean? Situation में अभी change आया है. Before this, that person, right, had not been attending so many webinars. अब आप जब पढ़ोगे, जब हम लोगों ने ISRM के बारे में पढ़ाया, उस टाइम पे मैंने बताया था, जब सिचुएशन में अभी थोड़ा सा चेंजेस आता है, in that case we use ISRM और ING. Wonderful. और आप इसको और भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे? I have been attending so many webinars nowadays. Okay, but the if you talk about the most appropriate, that is I am attending so many webinars. And before some days ago, I didn't ask. Okay, I didn't ask questions to resource person, but now I have been starting. Okay, अब यहाँ पे आता है I have been starting. अब यहाँ पे I have been starting नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आपने सोचा कि आप कंटिन्यूस प्रोसेस को कर रहे हो. नो, I have started asking. Thanks sir. Good. I have started asking. इसका मतलब क्या है? अभी इसका इम्पैक्ट है, रिसेंटली हुई है ये वाली चीज. आई हैव स्टार्टेड आस्किंग, राइट. अगर जिनको डाउट आ रहा है प्रीवियस रिकॉर्डिंग में आप लोग एक बार सुनना एंड इट विल गिव यू कंप्लीट आइडिया. ओके, ग्रेट. Or when I'm writing first, after that, yes, I want to discuss this thing as well. Some people, what they do, they write and then they speak. पहली बात तो आप क्या कर सकते हो, इट इज एब्सोल्युटली फाइन. अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन व्हाट वी ऑब्जर्व कि आप लोग जब बोलते हो ना किसी चीज को, तो आप लोग बैठ के बोलते हो. ठीक है, ऐसा नहीं करना. आप लोगों को खड़े होके बोलना है. क्यों? खड़े होके बोलने से फायदा क्या होता है? आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज यूज होती है, आपके हैंड जेस्चर्स आते हैं. आप लोगों को ये फील करो, आप लोग ये वाला जो कोर्स कर रहे हो ना, ये कोर्स आप लोग सिर्फ इसलिए नहीं करने कि आपको इंग्लिश सीखनी है. आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और ही है. आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? दे वांट टू क्लियर अ पर्टिकुलर कंपटीशन एग्जाम. जो लोग जॉब में हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? उनको या तो प्रमोशन चाहिए या फिर वो कोई दूसरी जॉब की तैयारी कर रहे हैं. हमारा ऑब्वियसली, आप लोग यहाँ पे 1.5 घंटा बैठते हैं तो आप लोग इंग्लिश सीखने बैठ रहे हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव इंग्लिश सीखना नहीं है. इंग्लिश तो आप लोगों का एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जो हेल्प करेगा. मेन मकसद आप लोगों की लाइफ में अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने अपने ड्रीम्स हैं. तो आप खुद सोचो, अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो आप ऑफिस में बैठ के तो बात नहीं करोगे ना कि आप लोग बैठ गए और आपने सामने पेपर निकाल लिया. नो, अब आपको क्या करना है? इफ यू वांट टू राइट दीज थिंग्स, लिख लो, लेकिन आप कैमरे के सामने खड़े होके बोलो. ठीक है. अब उससे क्या होता है? उससे सबसे अच्छा फायदा होता है, आपके हैंड मूवमेंट्स होंगे. आपके हाथ में पेपर भी होगा ना, डजंट मैटर. वो पेपर के लेके भी अगर आप अपने हैंड मूवमेंट्स कर रहे हो, दैट इज फाइन. दूसरा, पेपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स लिखो. ठीक है, शुरुआत में आप लोग पूरा का पूरा रीड कर रहे हो, दैट इज ओके. बट आफ्टर 5 और 10 डेज, उसके बाद आप लोग पेपर्स में सिर्फ पॉइंट्स लिखो, ताकि आप लोग को रिमेंबर रह सके. और जब आप अपने सेंटेंसेस बनाओगे, देन यू विल गेट टू नो, ओके यार, यहाँ पे मेरी गलती हो रही है. दिस इज द प्लेस वेयर आई कमिटेड दिस मिस्टेक. बिकॉज रिकॉर्डिंग तो हो गया ना, उसके बाद आप लोग खुद से नो. ओके, लेट मी टेक अदर क्वेश्चन. One person wrote a very big problem when I read the email. For video making, I'm making. Let me write this thing. Okay. Let me share it with all of you. What challenges problem person has been facing. I have facing. This is wrong. I have been facing problems when I have speak. पहले हम लोग, अब I speak with the initiate conversation. I get stuck sometimes, and the words I have been written in diary, but they are not click on time. Sometimes it happen. These all time take not happen in overnight. Thank you to teachers, amazing arsenal of English. I love it. As proudly say this course is nothing like it. Good. You use good things. लेकिन यहाँ पे कोई कहीं पे हम लोगों का ग्रामर हिला है. पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं. I have been facing problem. I really appreciate because you wrote nice words. I have been facing problem when I have speak. No, I speak only. There is no. And if you're talking about the past, you written in ready country, but they are not clicked on. Sometimes I know not happen in the overnight to teachers. I speak only. Okay, I speak and initiate conversation. I get stuck sometimes, and the words I have been writing in diary continuously, but they don't click. They don't click. अब ये आपका डेली, ये किनका डेली रूटीन है? दे का. They don't click, तो they doesn't नहीं आएगा. They don't click on time.
समटाइम्स इट्स हैपन, यही गलती जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं, ठीक है, इट्स हैपन, नो, इट हैपन्स, इट हैपन्स, आई नो दीज ऑल दीज थिंग टेक टाइम, इट विल नॉट टेक टाइम के बाद फुल स्टॉप लगाना है आपको, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट, इन ओवरनाइट लगाने की जरूरत नहीं है, ओवरनाइट, थैंक यू टू टीचर्स अमेजिंग आर्सेनल्स ऑफ इंग्लिश, I love it. Yes, proudly say this course is nothing like it. Good. Nothing like it का मतलब क्या होता है? इससे बेहतर कुछ नहीं. We already discussed these words. So you used all these things what we teach. सारी चीजें आप लोगों ने, आपने ट्राई किया कि आप लोगों ने सारे वर्ड, सारे वोकेबलरी को यूज करने का कोशिश किया. आर्सेनल भी डिस्कस, नथिंग लाइक इट भी डिस्कस. अब कुछ कुछ गलतियां जहाँ पे बेसिक हुई है, ये गलतियां अब आप जहाँ पे कुछ चीजें होती है जो अभी आप लोगों को नहीं पता. जस्ट एक एग्जाम्पल ऑफ गेट. आई डिडंट टीच यू, अभी मैंने गेट के बारे में नहीं पढ़ाया. सो जब गेट के बारे में पढ़ाएंगे उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जो चीजें मैं पढ़ा चुका हूं वो गलती अब आप लोग रिपीट मत करो, ठीक है. जैसे आई एम फेसिंग प्रॉब्लम, उसकी जगह क्या आ सकता है? आई हैव बीन फेसिंग प्रॉब्लम. इट्स और इट्स की जो गलती है वो आप मत करो. सो प्लीज 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 टेक ऑल दीज लेक्चर्स वेरी सीरियसली. आफ्टर कंप्लीटिंग द वेबिनार ऑलवेज लिसन द कंप्लीट रिकॉर्डिंग. एक बार आप पढ़ोगे, 2 या 3 बार 4 बार पढ़ लो. सर रिकॉर्डिंग लेक्चर्स इतने इतने घंटे के होते हैं. अरे सर होते हैं, वो आप लोगों के लिए ही है, ठीक है. I could have finished this lecture in 10 or 15 minutes. I could have. Go to the previous lecture, day before yesterday. मैंने क्या सेंटेंस बोला? I could have completed this lecture in 10 to 15 minutes. 10 से 15 मिनट में मैं खत्म कर सकता था. पास्ट एबिलिटी है, अब कर सकता हूँ क्या? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट. डे बिफोर yesterday यूज हो गया. अब कई लोग बोलते हैं, जैसे अभी सबसे पहला जो प्रॉब्लम आया था, व्हाट प्रॉब्लम पर्सन आस्क्ड कि सर चीजें स्ट्राइक नहीं करती, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो पाता. अब ये मेरे दिमाग में क्यों चीज आया कि सबकॉन्शियसली बैठा हुआ है, और दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस. मैं कोई अलग से पैदा होके नहीं आया, आप लोगों के जैसा हूं. आई यूज्ड टू फेस द सेम प्रॉब्लम्स व्हाट यू गाइस हैव बीन फेसिंग. सो ये दूर कैसे होंगी? कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग. इसको एज अ लैंग्वेज लो और कंटिन्यू यूज करते रहो. अब ये 1.5 घंटे का लेक्चर होता है, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि बड़ा पेन इज टेकिंग चीज है. आई यूज द वर्ड पेन इज टेकिंग. बहुत पेन देती है ये चीज, लेकिन आप ही लोगों के लिए है. इसीलिए आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे एंड स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन ऑल दीज थिंग्स. ओके, आज यार ये वाली चीज पढ़ी, गुड यार, ये चीज तो पहले पता ही नहीं थी. ओके, लेट्स मेक 2 और 3 मोर सेंटेंसेस. बस ये 3-4 महीने आप एक बार रगड़ के मेहनत कर लो, आप लोगों के लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली. दैट्स माई गारंटी. इसलिए द पीपल हु थिंक आप, मैं आपकी जगह होता और अगर मुझे रिकॉर्डिंग सुनना होता कोर्स के बाद, ठीक है, कि 2 या 1-1.5 2 घंटे का जो लेक्चर का रिकॉर्डिंग होता है, राइट, आई माइट फील बोर्ड. लेकिन चीज अगर यदि बोरिंग होती, नहीं होती, इंटरेस्टिंग होता, मूवी होता, तो हर कोई कर लेता, राइट. यू गाइस हैव टेकन दिस डिसीजन, यू गाइस हैव टेकन इनिशिएटिव. कर रहे हो ना आप लोग, 1.5 घंटे यहाँ पे भी बैठ के पूरे लेक्चर को सुनते हो. उसके बाद टाइम फ्रेमिंग कम होता जाएगा, और एक बार देखना है बस इसको. 2 या 3 बार आपने अगर अपनी लाइफ में 3 या 4 महीने देख लिया ना, उसके बाद आई कैन गारंटी यू आप लोगों को इन रिकॉर्डिंग्स की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में कभी भी. बट स्टिल फॉर द सेफर साइड कि आपके साथ लाइफ में रहे, तो हम लोग दे रहे हैं. उसके अलावा मैं नहीं चाहता कि आप लोग 3 या 4 महीने बाद जो जो इसको रिकॉर्डिंग को भी सुन रहा है उसको वापस कभी बार बार इन चीजों को पढ़ना पड़े. बस आप 3-4 महीने का ये वाला पेन है, उठा लो. उसके बाद लाइफ में आप अपने इंटरव्यूज की तैयारी करो, अपने जॉब्स की तैयारी करो, अपने कॉलेज में परफॉर्म करो, डिबेटिंग में हिस्सा लो. अब ये डिबेटिंग हो गया, आपका जीडी हो गया, कैंपस रिक्रूटमेंट हो गया, जॉब में प्रमोशन हो गया, उसमें इन चीजों को यूज करना है. कोई लेक्चर लेके थोड़ी ना बैठना है, ओके एस और यस में ऐसे यूज होगा. स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस. पहली बात ये है ना, ये इट इज नॉट अ मैथमेटिक्स की यहाँ पे मैं आपको 10 सम दे दूं और उसके होमवर्क करना है. दिस इज द फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर, और आपको इसके ऊपर फॉर्मूले के 10 क्वेश्चंस करने. नो, ऐसा होता तो बहुत चैलेंजिंग होता. दिस इज नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज. आज पढ़ो और उसके बाद आप कंटिन्यू अपने डेली उसके अंदर कॉन्वर्सेशन में इसको यूज करो. 24 घंटे यूज कर सकते हो, राइट. जैसे आप हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, उड़िया, जो लैंग्वेज आप बोलते हो, वैसे ही इसको आप अपने डेली लाइफ में यूज करो एंड थिंग्स विल गिव यू रिजल्ट. द पीपल हु थिंक कि सर वी हैव प्रॉब्लम मेकिंग सेंटेंसेस, वो चीजें ऐसे ही दूर होंगी. Good. Samir, what problem you have been facing? Just that you wrote that email. What you can do, you can share the screenshot the Instagram. Okay, because I receive so many messages on Instagram. It may possible कि it will take time, right? So don't expect a quick reply, right? कि क्योंकि हम लोग के सारे टैब खुले रहते हैं. Instagram ऑनलाइन भी होता है, तो जरूरी नहीं हम लोग उस टाइम पे फोकस्ड हो कि जवाब दे पाए. इसीलिए एक्सपेक्ट सम डिले, थोड़ा डिले हो सकता है, बट वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. ठीक है, जो भी आप लोग मैसेज लिखोगे ना इंस्टाग्राम पे, आई विल ट्राई टू आंसर.
ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोगों की प्रॉब्लम फटाफट रिजॉल्व हो जाए, बट स्टिल आपका थोड़ा टाइम लग सकता है, बट यू कैन शेयर इट विद मी। ओके, दूसरा, यू आर आस्किंग कि सर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है। सर कॉन्फिडेंस तो इससे पहले भी नहीं था ना, बट यू राइट ईमेल, तब भी भेजते थे। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको एक बताया है कि आप चाहो तो ग्रामरली टूल को, क्रोम का एक अपना प्लगइन आता है, उसको आप अपना इंस्टॉल कर लो उसके अंदर, और वहां पे आपकी हेल्प हो जाएगी। उसके बाद भी आप लिखना शुरू करो, ठीक है। एंड इट इज गुड थिंग दैट यू स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव, यू स्टार्टेड राइटिंग ईमेल्स। ओके, लिखो, ड्राफ्ट करके रखो, और उसको ग्रामरली में एक बार टूल पे चेक कर लो। बट स्टिल इफ यू थिंक दैट आई वांट टू गेट इट चेक, ओके, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके, I appreciate your confidence about us. Good, 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 Santosh. I really love it. Okay, start taking initiative, start taking videos, start making videos. Okay, so let us begin today's session. The people who have joined us for the first time, I really welcome all of you guys, and I am so pleased to have you in my webinar. Okay, so let us begin today's session. आप लोगों को जितनी स्ट्रेटेजीज मैंने अभी 10 से 15 मिनट पहले डिस्कस करी है, डू एक्सिक्यूट ऑल दीज थिंग्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक यू मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड ऑल दीज थिंग्स। आप लोगों में से सैटरडे संडे को कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया था प्रीवियस लेक्चर? प्लीज टाइप यस, और जो नहीं कर पाया प्लीज टाइप सॉरी। यस, प्लीज टाइप सॉरी। यस यस यस, one person wrote sorry. No. One person again, one person wrote sorry. Please. One person again wrote sorry. अधिकतर लोग yes कर रहे हैं। Okay, I just want to ask one question. Like lots of people typed yes. Why don't you guys make videos? आप लोग वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो? We discussed a very great topic about should have, could have and would have. ठीक है, ये लेक्चर आप लोग ने, सॉरी आई लर्न प्रीवियस लेक्चर। गुड सर, ऐसा मत करो। ठीक है, दोज पीपल हु हैव जॉइंड अस टुडे, जो आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसी गलती आपको नहीं करनी। अरे यार, ये वाला लेक्चर तो हम लोग पहले एक बार के लिए वो कर, पहले मैं पुराना पढ़ लेता हूँ, उसके बाद पढ़ूंगा। आप लोग जब भी आज पढ़ने भी बैठोगे, उसके बाद भी मैं प्रीवियस लेक्चर का या फिर जो भी उससे लिंक होता है वो मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग हर दिन, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं भी पढ़ा, उनका लॉस ना हो इसके अंदर। इसीलिए ये गलती मत करो कि पहले पुराना पढ़ने बैठोगे और उसके बाद नया पढ़ोगे। नया पढ़ो, इसके साथ साथ पुरानी चीजों को रिकॉल करते चले जाओ, अदरवाइज आप चीजें भूल जाओगे। ठीक है, ट्राई टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द लाइव क्लास। आप जो आज जो पढ़ा उसको पूरा का पूरा यूज करो, उसके बाद आप प्रीवियस लेक्चर पढ़ते ना, वो तो आपके पास है ही ना हमेशा के लिए। ओके, बिकॉज इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस थ्री थिंग्स, शुड हैव, कुड हैव एंड वुड हैव, और ऑल दीज थिंग्स आर प्रीटी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा आप लोगों के लिए। अब जैसे आप लोगों ने बोला कि सर मैं प्रीवियस लेक्चर पढ़ रहा था, यू शुड हैव रिवाइज्ड, यूज हो गया ना, दिस इज योर रिग्रेट। पास्ट में आपको पढ़ना चाहिए था, बस ऐसे ही तो यूज करना है। कौन सा मेरे को आप लोगों को कोई रिग्रेट फील करवाना है? ओके, और यू कुड हैव रिवाइज्ड कर सकते थे ना, बिकॉज वी हैड 2 days। अब कर सकते हो, हाँ कर तो सकते हो, लेकिन आज बोलने के लिए क्या है कि आई कुड हैव यूज कर सकते हैं। ओके, no. Please don't, send us into the personal email। दिक्कत क्या होती है, पहली बात तो इतना आप लोगों के साथ भी वो प्रॉब्लम होगी। दूसरा, हम लोग एक एक करके हम लोग किसी को ईमेल पे हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। लॉट्स ऑफ पीपल यूज टू से कि सर हम लोग व्हाट्सएप पे भेज दें, नॉट पॉसिबल। तो आपके लिए दूसरा होगा कि आप लोग किस चीज से डर रहे हो। स्टार्ट मेकिंग वीडियोस। आई लर्न प्रीवियस लेक्चर, ओके, स्टार्ट मेकिंग वीडियोस। दूसरा, ग्रुप में करो। यू हैव नो आइडिया कि आप लोगों को वहां से कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है। ठीक है, इसीलिए ग्रुप में ही करो। स्टार्ट शेयरिंग योर नॉलेज। अभी आप लोग क्या कर रहे हो ना, यू आर कमिटिंग वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ योर लाइफ। यू आर लर्निंग, यू आर एग्जीक्यूटिंग। रीजन क्या है? बिकॉज द वे यू रोट दिस पर्टिकुलर थिंग, कि लेट मी शेयर इट, आई डोंट शेयर द नेम ऑफ द पर्सन, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, व्हाट द पर्सन रोट हियर इज, sir making video but not uploading, can I send personally on your mail? 3 चीजें मैंने आपको बताया था, लर्निंग, एग्जीक्यूटिंग एंड शेयरिंग। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप 2 चीजें तो फॉलो कर रहे हो। यू लर्न, एग्जीक्यूट भी कर दिया बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मेड वीडियोस। तभी आप बोल रहे हो कि ईमेल पे सेंड कर देता हूं। सर शेयर करो आप, और शेयर करोगे तो आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी। आप अपने ईमेल को कभी खोल के नहीं देखोगे, लेकिन सोशल मीडिया पे यू कैन फाइंड आउट ऑल द प्रीवियस वीडियोस व्हाट यू हैव मेड।
and this is my promise, right? Start making 10 to 15 videos continuously. Once you start making your 15 video, you will get to know that the first video where you committed mistakes and the level of confidence was pretty low as compared to the videos what you have made on 15th time. 15वां जो वीडियो होगा उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आप देखोगे और फर्स्ट वीडियो से. द सेम थिंग हैपेंड विद मी. ठीक है, इन माय कॉलेज टाइम व्हेन आई यूज्ड टू टेक माय फर्स्ट वर्कशॉप, पहली वर्कशॉप थोड़ी ऐसी एवरेज सी थी. उसके बाद जैसे जैसे मैं वर्कशॉप्स लेता गया, वर्कशॉप्स इंप्रूव होती गई. व्हाट आई कुड हैव थॉट यूज हो गया. मैं भी सोच सकता था पहले. क्या सोच सकता था? अरे यार नहीं, पहले कॉलेज पास कर लूंगा, उसके बाद मैं जॉब करूंगा, उसके बाद फिर मैं वर्कशॉप्स लेना शुरू करूंगा. अगर मैं ऐसा सोचता, आई वुड हैव नॉट टेकन वर्कशॉप वेरी फ्रीक्वेंटली. आई वुड हैव नॉट टेकन. मैं कंटिन्यू फ्रीक्वेंटली वर्कशॉप नहीं लेता. रीजन क्या होता है? हर चीज का एक लेवल होता है. आप शुरुआत जीरो से ही करोगे, और आप लोग को मैं मानता हूं कि अब आप लोग कोई भी जीरो नहीं हो. जीरो कौन सा होता है? जिसे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, जिसे ABCD भी नहीं आती. You guys have been putting in so much effort, इसलिए आप लोग कंटिन्यू वीडियोस बनाना शुरू करो. Start putting contents on our Facebook group. This is the best opportunity what we can offer. Try to leverage all these things. Leverage का मतलब क्या होता है? उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट उठाओ. Okay? Good. गुड. आई वॉच वेन एवर आई गेट टाइम. सर पहली बात तो आप ये मत सोचो कि आई गेट टाइम तो निकालना पड़ेगा. ठीक है, आप ये मत सोचो. जस्ट टेक व्हाट इफ आई टॉक अबाउट द फाइनेंशियल एडवाइस व्हाट आई जनरली गिव टू पीपल, कि अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट योर सेविंग. 10,000 में से आप मान के चलिए, आपने आपको फिक्स कर लिया कि मुझे 3,000 रुपीज तो मंथली सेव करनी है 10,000 के अंदर से. तो 3,000 क्या हो गया? आपका सेविंग हो गया. और 7,000 उसको आप अपने स्पेंड करो, आपकी जो भी चीजें खर्चे करोगे. और लोग क्या गलती करते हैं? 10,000 में से पहले तो खर्चा करते हैं, उसके बाद जो बचता है दैट इज कॉल्ड सेविंग. अरे वो सेविंग थोड़ी ना. द सेम थिंग आपके साथ भी है. 24 घंटे में, अब मैंने फाइनेंस का एग्जांपल कैसे लिया, वो एग्जांपल आपको अपनी डेली लाइफ में कैसे करना है. यार मुझे 1 घंटा तो प्रैक्टिस करना ही है 24 घंटे में से. अब मेरे पास बचते हैं 23 घंटे. अब 23 घंटे में आप सो, खाओ, पियो, ऑफिस जाओ, कुछ भी करो, दैट इज योर बिजनेस. लेकिन वो 1 घंटा है, दैट इज कांस्टेंट, वो आपको करना ही है. चाहे आप अपने सोने में उसको कॉम्पनसेट करो, खाने में कॉम्पनसेट करो, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन 1 घंटा आपको अपना निकालना ही है. ये मत सोचो कि जब टाइम मिलेगा तब मैं उसको करूंगा. पहले आपका फिक्स है कि मुझे 1 घंटा तो मुझे रिकॉर्डिंग सुनना है, मुझे इंग्लिश के अंदर प्रोसेस करना है, मुझे अपने इंग्लिश में वीडियोस बनाने हैं, मुझे इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने हैं, मुझे इंग्लिश में ही सोचना है. राइट? और इसके लिए यू डोंट नीड एनी पार्टनर. ओके, ग्रेट, लवली. सो लेट अस डिस्कस द वोकैबुलरी ऑफ द डे. जो आज का वर्ड है हम लोग डिस्कस करेंगे. द वर्ड हियर इज, व्हाट वाज द वर्ड? प्लीज गिव मी द वर्ड. सेलिब्रेट. Please start putting meaning. सारे meaning. Celebrate. Good. Decision, inference, arrive, reflect, think. Rashnicia, good. Nowadays pandemic is going on the speculate. Nowadays pandemic is going on the contrary. I am just thinking about how to celebrate our anniversary. Wonderful. Good. Think deeply. Good. Celebrate meaning think deeply about something. Ponder, resonate, deliberate, reflect, contemplate, reason, cogitate. Good. Think deeply about something. Ponder. You always evaluate. Good. Sign the document without checking. So I suggest him please celebrate the document before signing any documents or agreement. Wonderful. Think deeply about something. Rare. To make a decision. Rare. मुझे समझ में नहीं आया. One person wrote here is rare. How did you come to know about this word rare? आप एक बार मुझे बताइएगा. Think deeply about something. Good. Let us discuss the complete word. The word what I gave, the people who have joined us today for the first time, ये हम लोग का सिस्टम होता है जहां पे हम लोग एक वर्ड देते हैं और उस वर्ड को नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके मीनिंग्स, उसके सिनोनिम्स और हम लोग कहां कहां पे उस वर्ड को यूज कर सकते हैं. इन द प्रीवियस क्लास आई गिव द वर्ड सेलिब्रेट. सेलिब्रेट एक वर्ड दिया था, इसका मीनिंग अगेन पीपल रोट समथिंग. लेट मी चेक. Celebrate synonym, enjoy. He enjoys the freedom of living alone. Dedicated person could dedicate his life to understanding. Just one suggestion and never even get close. She proclaimed that she will run for governor. Fulfill. No. सारी चीजों में celebrate कहीं पे fit नहीं बैठता. Whenever you speak new words, I celebrate about it. Good. Observe को आप लगा सकते हो. Observe को आप use कर सकते हो. ठीक है. Now again some people wrote. Let me read. Observe. No. Observe and adore, there are difference. आप praise करना, praising, no. Let me share this thing.
I don't know how did you know these words. जो अभी वर्ड लिखा है, let me share it into the common window. ये किसी ने लिखा है ऑब्जर्व, अडोर, प्रेज एंड रिजॉइस. नो, ये बैठता नहीं है. इनमें से ऑब्जर्व को आई कैन कंसीडर, बट एडोर, प्रेज और रिजॉइस नो, वी कांट. प्रेज, एडोर, ये सब तो किसी को प्रेज करने वाली चीजें हैं. ये किसी को कॉन्टेम्पलेट और किसी के थॉट प्रोसेस के लिए नहीं आता. बट यस, ऑब्जर्व इज अ राइट वर्ड. समटाइम्स ध्यान रखना, गूगल हमेशा सही नहीं होता. गूगल में लिखते कौन है? आप और मेरे जैसे. कोई भी अगर यदि किसी को लगा कि चलो मेरा ज्ञान काफी हो गया है और मैं लिखना शुरू करूं, सो समटाइम्स यू शुडंट रिलाई ऑन गूगल ऑल द टाइम कि वो सब चीजें सही बताता है. गूगल खुद कुछ नहीं लिखता है. ओके, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द वर्ड एंड इट्स मीनिंग, कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी थी. लेट मी टेक इट इन अ सिंगल स्लाइड. That was the word celebrate. और what does it mean? Think about something so deeply. जिसे आप ponder भी कह सकते हो, contemplate भी कह सकते हो, mull over भी कह सकते हो. mull, I love this phrasal verb mull over, यानी किसी के बारे में सोचना. और if you talk about the typical हिंदी word, इसका मतलब क्या होता है? चिंतन करना. ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी. चिंतन का मतलब क्या होता है? यू हैव टू मल ओवर अबाउट द सेंटेंसेस, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी. चिंता तो वरी होती है. अब आप सोचते रहो यार मेरे को इंग्लिश अच्छी करनी, मेरे को इंग्लिश अच्छी करनी है. व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग? यू आर वरिंग. आप चिंता कर रहे हो. और चिंतन का मतलब क्या होता है? ओके, द वर्ड टुडे इज सेलिब्रेट. लेट्स मेक सम सेंटेंसेस. सो अभी आप लोग क्या कर रहे हो? यू आर मलिंग ओवर द वर्ड सेलिब्रेट. अब सेलिब्रेट का मतलब भी मलिंग ओवर, मल ओवर होता है. ओके, ब्रेनस्टॉर्म. ब्रेनस्टॉर्म का मतलब क्या होता है? द पीपल हु हैव बीन वर्किंग इन ऑफिस. ऑफिस में जब आप क्या काम करते हो? आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो. इफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले क्या सोचते हो? आप उसके प्रोज एंड कॉन्स सोचते हो कि इसमें इतना बजट मेरे को लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए. इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन पर्टिकुलर कॉलेज, आप सोच रहे हो कि मुझे इंडिया से बाहर पढ़ने जाना है. सो व्हाट एग्जैक्टली यू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग. क्या? कि उस कंट्री का जो अपना पूरा का पूरा लिविंग एक्सपेंस कितना आएगा, क्या उसकी डिग्री की वैल्यू है भी या नहीं है, या मैं 3 या 4 साल वहां पे रहूंगा या रहूंगी, उसका कुछ बेनिफिट भी होगा या नहीं होगा. सो व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग ब्रेनस्टॉर्मिंग. ओके, रुमिनेट, all these words are related to celebrate only. Okay, use of this word. I celebrated and finally decided to fight against these odds. अब ये सेंटेंस मैंने क्या लिखा? I celebrated, I thought a lot, I considered, I observed. अब यहाँ पे सबसे ज्यादा बेस्ट वर्ड क्या आता है? I celebrated and finally decided to fight against these odds. इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक वर्ड यूज किया मैंने, fight against these odds. आप सब लोग का एग्जाम्पल लेता हूं मैं. Before joining this course, right, you had been facing lots of challenges. अब at the end of the day आपने क्या किया? You finally celebrated. आपने बहुत सोचा and finally you decided. क्या डिसाइड किया आपने? कि you have to fight against all the odds. ध्यान रखना, fight against the odds. Against the odds का मतलब क्या होता है? सारी की सारी जितनी भी आपकी परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां, right, the things which are not in your favor. तो वो कैसी है? सारी की सारी विपरीत परिस्थितियों के अगेंस्ट आपने लड़ने का सोचा. अब आप वहां पे कोई तलवार लेके थोड़ी ना गए हो, नहीं. व्हाट यू डिसाइडेड? You joined this course and you started practicing. So what exactly you did? You started fighting against all the odds. But before this, you celebrated. क्या करा? सोचा आपने, सारी की सारी चीजों का आप लोगों ने चिंतन किया and finally you decided to fight against all the odds. अब ये सब चीजें कैसी है? Celebrate का. Tomorrow, once you get the recording, उसके बाद आप इनके ऊपर सेंटेंसेस बनाना सोचो. लॉट्स ऑफ पीपल मेड लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड रियली लव्ड इट. ठीक है, ऑलमोस्ट सारे सेंटेंसेस सही थे. एक या दो जहां पे अडोर वाला चीज आया, वो मैंने बताया कि वो चीज सही नहीं बैठ रहा. ऑब्जर्व वर्ड वाज एब्सोल्युटली करेक्ट. अब इस वर्ड को आप कंटिन्यू यूज करो अपनी डेली लाइफ में. चाहो तो यू कैन यूज इट इन योर ईमेल एज वेल. ओके, ईमेल राइटिंग में. लेकिन उससे पहले कीप प्रैक्टिसिंग. ओके, गुड. ध्यान रखना, इस जो वर्ड्स यहाँ पे डिस्कस होते हैं ना, उसके बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कभी ये नहीं देखना पड़ेगा कि यार इस वर्ड का क्या मैं सही कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ. ठीक है, बट इफ यू स्टार्ट रीडिंग दिस वर्ड इनटू द डिक्शनरी, गॉड विल हेल्प यू ओनली.
ओके फिर नहीं हो पाएगा। इसीलिए बेटर ये है कि मैंने आप लोगों को तभी बोला है स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। अब आप लोग जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप न्यूज़पेपर में पढ़ना शुरू करो, ओके ओके व्हाई डज दिस सेंटेंस ऑथर रोट दिस सेंटेंस इन दिस वे, इसकी जगह और क्या क्या लिख सकते थे, और क्या क्या हो सकता था। अब हम लोग वैसे ही हम लोग कम्युनिकेट करेंगे। और इसके अलावा द पीपल हु थिंक कि मेरा कम्युनिकेशन में ट्रांसलेशन आता है, तो इसके लिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी और बताता हूं कि आप लोग कैसे अपनी फ्लुएंसी को इंप्रूव कर सकते हो। जस्ट एक एग्जांपल कि यहां पे मैंने बोला आई एम राइटिंग एन ईमेल, लिसन इट वेरी केयरफुली, आई एम राइटिंग एन ईमेल। अब क्या होगा, आप लोग चाहो तो इसको एक गेम बना सकते हो, और गेम आप कैसे बनाओगे, आपको किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आप कोई भी प्रोग्राम चला लो, चाहे आप अपना कोई भी टीवी पे कोई प्रोग्राम देख रहे हो, ठीक है, डोंट वॉच न्यूज, आई अगेन टेलिंग यू डोंट वॉच एनी न्यूज चैनल। कोई भी आप प्रोग्राम देख रहे हो, या फिर आप सपोज कीजिए किसी का भी इंटरव्यू सुन रहे हो, या फिर आप खुद भी बोल रहे हो, ठीक है, हमेशा ट्राई करो कि इसकी जगह मैं और दूसरा वर्ड क्या लगा सकता हूँ। लेट मी गिव यू वंडरफुल एग्जाम्पल। आपने अगर इस प्रैक्टिस को फॉलो किया, क्यों मैं ये चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को वोकैबुलरी का मतलब समझ में आ गया कि वोकैबुलरी का मतलब सिंपल वर्ड का मीनिंग नहीं होता, उस मीनिंग को सही जगह सही टाइम पे सही पर्सन के साथ यूज करना होता है। आपने अभी एक सेलिब्रेट वर्ड देखा, वी डिस्कस लॉट्स ऑफ सिनोनिम्स, और एक यूज का वर्ड देखा। मैंने सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं और इसको आप फॉलो करना। द पीपल हु थिंक कि सर सेंटेंसेस नहीं आते, वर्ड्स भूल जाते हैं, एक वर्ड है, सपोज कीजिए मैं लिखूं आई एम राइटिंग एन ईमेल, गुड। अब ये तो मैंने आप लोगों को लिख दिया ताकि आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिखे, और जब आप इसको एज अ रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो आप लोगों के सामने एक आई एम राइटिंग एन ईमेल चीज दिखे। जैसे ही आप लोगों ने अपने दिमाग में एक ईमेल राइटिंग एक वर्ड आ गया, ट्राई टू यूज डिफरेंट वर्ड्स कि राइट की जगह मैं और क्या क्या बोल सकता हूँ। लिखो राइट की जगह मैं क्या बोल सकता हूँ, आई एम कंपोजिंग, ठीक है, आई एम ड्राफ्टिंग। तीन वर्ड्स आ गए आप लोगों के, राइट आ गया, कंपोज आ गया, ड्राफ्ट आ गया। अब पता नहीं और सोचता तो मैं और चीजें भी लिख सकता हूं। अब सर राइट के साथ कंपोज लिखा, ड्राफ्ट लिखा, तो मैं क्या आई एम प्रिपेयरिंग लिख सकता हूं? नहीं, ये थोड़ा खराब वर्ड है, प्रिपेयरिंग मैच नहीं करता। दूसरा और क्या लिख सकता हूं, सर आई एम मेकिंग लिख सकता हूं? नहीं, ये भी खराब है। ये चीजें आप किससे बात कर रहे हो, अपने आप से बात कर रहे हो। आई एम राइटिंग, राइटिंग की जगह और क्या लिख सकता हूं, आई एम कंपोजिंग, आई एम ड्राफ्टिंग, डन। और ऐसी ही जितनी भी चीजें आप लोगों के दिमाग में आती है, आई एम ईटिंग फूड, ईट की जगह क्या बोल सकते हो, आई एम टेकिंग, आई एम हैविंग, डन। इसके अलावा और क्या चीज यूज कर सकते हो, सपोज कीजिए आपने एक वर्ड यूज किया और लेट मी थिंक, I celebrate thinking about my C's practice. I celebrate thinking about my C's practice. Good, good, good. ठीक है, यस। चलिए एक और हम लोग सोचते हैं, यस वन पर्सन शायद आई थिंक गिव मी सम सजेशन। आर्टिकल, नो 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 नो, आर्टिकल नहीं आ सकता, आर्टिकल ऐसे नहीं आ सकता, ईमेल लिखने में आर्टिकल यूज नहीं होता। आई एम टॉकिंग अबाउट द ओनली राइटिंग कंपोजिंग। यस, चलिए एक वन पर्सन रोट हियर इज आई एम, लेट मी राइट हिज वर्ड व्हाट ही रोट, आर्टिकल और ऐसे। ये आर्टिकल और ऐसे ईमेल के लिए यूज नहीं होगा। ईमेल के लिए या तो राइट आता है, या कंपोज आता है, या फिर ड्राफ्ट आता है। ओके, हाँ, आप चाहो तो आप एक राइटिंग उसके लिए लिख सकते हो, आप राइटिंग ऐसे, राइट, कंपोजिंग ऐसे लिख सकते हो, ये सब उसके लिए फिट होता है, लेकिन ईमेल के लिए वर्ड यूज नहीं होता। लेट मी गिव यू अदर एग्जांपल, लेट मी थिंक कि हम लोग और कैसे प्रॉब्लम अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव कर सकते हैं। वर्ड आया, गुड गुड गुड, यहाँ पे एक वन पर्सन रोट हियर इज लवली, राइट, आई एम जॉटिंग, राइट, गुड। लेट मी, मुझे डिस्कस करना है। जॉट डाउन, जॉट डाउन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लिखना, लेकिन जॉट डाउन का मतलब होता है कॉपी पेन पे जो लिख रहे हो। आप मेल को कभी भी जॉट डाउन नहीं करते हो, ओके, बट सिंस यू ट्राइड वेरी वेल, आई रियली अप्रिशिएट इट। आई एम थिंकिंग अबाउट अदर वर्ड्स, ताकि मैं आप लोगों को एक बार हेल्प कर सकूं, एक आइडिया दे दूं कि आप बातचीत करते करते कैसे कैसे चीजों को सोच सकते हो। जैसे आपने देखा आई एम स्क्रिप्ट, नो स्क्रिप्ट भी नहीं आएगा, मेल के अंदर स्क्रिप्ट वर्ड नहीं आएगा, आप मेल को कभी स्क्रिप्ट नहीं करते। आई एम थिंकिंग अबाउट लास्ट ईयर।
अब क्या हो गया, आई एम थिंकिंग अबाउट लास्ट ईयर। सपोज कीजिए आप 2021 की बात करते हैं, सो आप अब क्या कर रहे हो, अभी आप लोगों ने सपोज की हम लोग 2021 में चले जाते हैं, या फिर अभी की बात करते हैं, चलिए 2019 में आप बैठे हो अपने घर में और आप अपने सबकी किसी ने आपके फैमिली मेंबर ने बोला कि यू आर लॉस्ट, कहीं पे खोए हुए हो। मैंने कहीं खोया हुआ नहीं हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट लास्ट ईयर 2019 में क्या मैंने चीजें करी, क्या क्या मैं चीजें इंप्रूव कर सकता था, सारी चीजें। सो आई एम थिंकिंग अबाउट लास्ट ईयर। अब थिंकिंग की जगह क्या बोल सकते हो, आई एम कॉन्टेम्पलेटिंग, आई एम कॉन्टेम्पलेटिंग, और आई एम पॉन्डरिंग, और आई एम सेलिब्रेटिंग। सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं ये आप लोग कंटिन्यू यूज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ यूजिंग ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, गैसिंग, नो नो गैस नहीं आएगा, गैस नहीं आएगा, गैस मतलब नहीं होता ना, गैस का मतलब तो आपको सिंपल एक फ्लूक लेना होता है। ओके, सो यू कांट राइट ऑल दीज थिंग्स, वेयर इज वंडरफुल। सो ये चीजें आप लोगों को कंटिन्यू इंप्रूव करने की, व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू व्हेनेवर यू आर टू मेक अ पर्टिकुलर सेंटेंस, व्हेनेवर यू आर टू स्पीक और व्हेनेवर यू लिसन समथिंग, ऑलवेज रिप्लेस दैट पर्टिकुलर एक्शन विद डिफरेंट वर्ड्स। तो सर इसमें हम लोग क्या हर चीज के बारे में सोचे, नो नो नो, आपको सिर्फ एक्शंस को सोचना है। ध्यान रखना, आपकी फ्लुएंसी में सिर्फ एक चीज आपको अटकाएगी, वो है आपके एक्शंस। एक्शंस का मतलब क्या होता है, जो वर्ब्स होती है, इसके अलावा कभी आपको नहीं अटकाएंगे। अब लास्ट ईयर को लास्ट ईयर ही बोलोगे ना, आप ईयर को तो ना चेंज कर सकते हो, इसीलिए ईयर ईयर ही रहना चाहिए। आपको जो मेन चीजें सीखनी है वो सीखनी है कौन सी, वो है आपके एक्शंस। और ध्यान रखना, आपकी फ्लुएंसी को सिर्फ और सिर्फ एक्शन से इंप्रूव करेंगे। आप अपने नाउन को इन सबको बढ़ा बढ़ा के कुछ करने वाला कोई मतलब नहीं है। ओके, सर दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, वन पर्सन आस्क कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलिब्रेट इन हिंदी। सर पहली बात तो हमको इन चीजों को हिंदी में सोचना नहीं चाहिए, बट सिंस इफ यू आर आस्किंग, तो मैंने आपको बताया था कि सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, चिंतन करना। ठीक है, आप बैठ के किसी चीज को सोच रहे हो, फिर अब चिंतन तो क्या होता है, आप बैठ गए, अब हर जगह चिंतन तो वो तरीके से स्पिरिचुअल चीजें हो गई, तो वो मतलब हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे तो यू फाउंड दिस वर्ड ब्रेन स्टॉर्म। अब आप ऑफिस में क्या करते हो, यू डू ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या हो गया, यार इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो मार्केटिंग बजट कितना ज्यादा है, अभी तो जो हमारा कस्टमर है उसके सेंटिमेंट्स ही ऐसे नहीं है, दूसरा अभी तो कोरोना चल रहा है, कोरोना में लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग यार प्रोडक्ट लेंगे नहीं, तो क्या अभी हम लोगों को मार्केटिंग में, सेल्स में इसमें पैसा लगाना चाहिए या फिर इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए। अगर लॉन्च करें तो हम लोग एक काम करते हैं, कोविड के बाद हम लोग प्रोडक्ट की, हम लोग लोअर वाला प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं जो हर किसी की पहुंच में हो। या फिर अगर कोई एफएमसीजी की या फिर कोई फार्मा कंपनी है, फार्मा कंपनी क्या सोचेगी, अभी इस टाइम पे क्या है, सैनिटाइजर हो गया, इसका हम लोग अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो बेटर रहेगा। जस्ट एक एग्जांपल ऑफ सेवलॉन और डेटॉल, इन लोगों ने क्या किया, अपना प्रोडक्शन बहुत बढ़ा दिया। सो व्हाट दे डिड, दे ब्रेनस्टॉर्म्ड कि आने वाले टाइम पे इसकी बहुत ज्यादा डिमांड आने वाली है, तो व्हाट एग्जैक्टली दे डिड, दे सेलिब्रेटेड। अब आप उसको चिंतन नहीं बोल सकते, वहां पे क्या हुई है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई है। लेकिन आप सपोज कीजिए अपने पास्ट के बारे में सोचते हो, वहां पे जो गलतियां आप लोगों ने करी है उसको आप इंप्रूव करने की सोचते हो, फ्यूचर के लिए आप प्लान करते हो। सो व्हाट एग्जैक्टली यू डू चिंतन। वहां पे एक वर्ड आता है चिंतन, लेकिन प्लानिंग जहां पे होती है वो क्या है, वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग। द वर्ड हियर इज सेलिब्रेट, लेकिन हम लोग अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज करते हैं। ओके, ग्रेट। सर गूगल इन, सर सेलिब्रेट और सेलिब्रेट अलग अलग वर्ड है, यू कांट से, राइट। अगर वो वहां पे दे रहा है तो वी कांट से कि ये उसका सिनोनिम है। ओके, फेयर इनफ। सो लेट अस डिस्कस टुडेज लेक्चर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपल्शंस ऑफ लाइफ। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि लाइफ के कंपल्शंस क्या क्या होते हैं, राइट। और आज के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहां कहां पे लोग गलती करते हैं और आपको वो गलतियां नहीं करनी। यू हैव टू थिंक बिफोर स्पीकिंग। जो सेंटेंसेस कंपल्शन क्या होते हैं लाइफ में, मैं आज को 3 तरीके की चीजें बताऊंगा, राइट, जिससे आपको हेल्प हो जाएगा कि कंपल्शन का मतलब क्या होता है। सम पीपल आर आस्किंग कि सर कंपल्शन का मतलब क्या होता है। कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी, जहां पे आपकी मजबूरी है किसी काम को करने की। तो 3 तरीके की चीजें होती है जहां पे कंपल्शन को हम लोग डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं, लेट अस discuss these things, right? Look at this graph. आप लोगों के सामने एक ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। प्लीज 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 लिसन एंड लुक इट वेरी केयरफुली कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था 3 तरीके की कंपल्शंस होते हैं, राइट। 3 तरीके के कंपल्शंस कौन कौन से हैं। पहला कंपल्शन है योर डिजायर, ठीक है, अगर आपकी किसी चीज की इच्छा होती है, सो दैट इज कंसिडर्ड एज योर वांट, ठीक है। अब डिजायर का मतलब क्या हो गया,
सपोज कीजिए आपके पास एक 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर आपके पास कौन सा है, सपोज कीजिए यू बॉट, आपने कोई खरीद लिया, आपने होंडा सिटी खरीद लिया आपने, सो होंडा सिटी खरीदी आपने, एक बार होंडा सिटी खरीद ली। अब आप क्या है, होंडा सिटी के बाद अब आप सोच रहे हो कि हर साल अपनी गाड़ी अपग्रेड करने का। दिस ईयर यू हैव होंडा सिटी, नेक्स्ट ईयर यू आर प्लानिंग फॉर BMW, ठीक है, फिर आप मर्सिडीज पे जा रहे हो, फिर आप लैम्बोर्गिनी पे जा रहे हो। तो ये आपकी क्या है, अब आप जब अपनी होंडा सिटी चलाते हो, सो यू हैव डिजायर टू बाय योर BMW, ठीक है, वो आपका कंपल्शन नहीं है। अगर आप, काम तो चल ही रहा है ना आपका होंडा सिटी में, अगर आप BMW लोगे सो दैट इज योर डिजायर, ठीक है। वो क्या है, एक वांट जो है, वांट हमेशा मजबूरी कभी नहीं होती। हमारी मजबूरी क्या होती है, हमारी मजबूरी 3 मजबूरियां होती है, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान के बाद ये तो आ गई हमारी नीड, राइट, और इससे ऊपर हमें बढ़िया खाना चाहिए, दैट इज आवर डिजायर। मकान चाहिए रहने के लिए, दैट इज योर नीड। लेकिन बहुत आलीशान बंगला चाहिए, दैट इज योर डिजायर। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वी आर ऑलवेज यूजिंग वांट टू। अब यहाँ पे आगे की जो चीजें यूज होंगी वो मैं आपको बताता चले जाऊंगा। अभी जस्ट कॉन्सेंट्रेट अपॉन दीज थिंग्स की होता क्या क्या है। लेवल ये है कि अगर आपकी किसी चीज को लेकर इच्छा बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी नीड कम है, इन दैट केस दैट इज कंसिडर एज अ वांट वाला पार्ट। और जहां पे कंपल्शन बहुत ज्यादा आ जाए, सपोज कीजिए कि आपको गाड़ी लेनी ही है, यू डोंट हैव एनी 4 व्हीलर, अभी आपके पास कोई गाड़ी नहीं है, सो वहां पे क्या होता है, वहां पे व्हाट वी यूज हैज टू और हैव टू और हैड टू अकॉर्डिंग टू द स्टेट। वी जनरली यूज हैज टू और हैव टू, हम लोगों ने कई बार यूज भी किया है, मोस्ट ऑफ द पीपल नो दिस थिंग, बट आज आपको समझ में आ जाएगा कि इनको कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे कैसे कैसे यूज करते हैं। दो चीजें आप लोगों ने यूज करी होंगी, बट आई एम प्रीटी श्योर most of the people, majority of the people don't have any idea about this one. This one is the second category. Second category कौन सी है, अगर यहाँ पे want है और यहाँ पे आपकी need है, यहाँ पे तो want to को यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप यूज कर रहे हो has to और have to को, इनके बीच में भी एक चीज होती है। In that case, how do we make sentences? We will see one by one. Okay? Great. ऑल दीज थिंग्स यू ऑलरेडी नो, लेकिन सेंटेंस फॉर्मेशन में कई चीजों में आप गलती करते हो, इसलिए प्लीज 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 लुक एट ईच एंड एवरी सेंटेंस केयरफुली। व्हेन देयर इज वांट और डिजायर, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई चीज का कंपल्शन नहीं है, आपको बस वो चीज चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आप मर जाओगे, ऐसा कोई चीज नहीं है कि इसके बिना हम रह नहीं सकते। सो दैट इज आवर वांट। हम लोग, अगर मेरे पास कोई बहुत बड़ा लग्जूरियस कार नहीं है तो ऐसा नहीं कि मैं मर जाऊंगा उसके बिना, राइट। लेकिन अब आपको क्या यूज करना है, वहां पे क्या आएगा, दैट इज आवर नीड, दैट इज आवर वांट, दैट इज आवर डिजायर, कि आई वांट दिस कार। सो दैट इज योर डिजायर एंड वांट, बट दैट इज नॉट योर कंप्लीट नीड। उसके बिना भी आपकी लाइफ चल सकती है। व्हाई आई एम पुटिंग इन सो मच एफर्ट्स, इट सीम्स वेरी सिंपल, बड़ा सिंपल है, फिर पढ़ा क्यों इस चीज को। आगे आगे जब सेंटेंसेस बनते जाएंगे, यू विल गेट टू नो व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ डू वी मेक सेंटेंसेस, व्हाट आर द प्लेसेस वेयर पीपल कमिट मिस्टेक्स व्हिच वी आर नॉट सपोज्ड टू डू। The person who was asking कि सर supposed to को कैसे यूज करेंगे, मैंने अभी यूज किया है, we are not supposed to commit mistakes. Okay, so first discuss about the present state. Present state में क्या होता है, we already know I, we, you, they के साथ we always go with no s or es, only want to plus action first form, right? This one is the example what person wrote here is, right, I don't want to take the name of the person. I received one Instagram message today only. One person wrote here is, in my bright future I want to become a good fluent English speaking anchor, so sir I will achieve our goal with the help of your course. I really appreciate it, right? I really appreciate his words, what the person wrote. अब यहाँ पे देखिए, what person wrote here is, in my bright future I want to become, यहाँ पे want आ गया। अब मैं आपको बोलने वाला हूं कि ये आपका want नहीं है, right? This is your compulsion. ये आज से आप अपना कंपल्शन बना लो कि मुझे तो बनना ही है। सेंटेंस कैसे बनेगा, वी विल लुक, हम लोग देखेंगे उस चीज का, ओके। बट आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे वांट नहीं आएगा। सर मैंने तो सुना है वांट है, अरे एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन अब ये आपको अपनी मजबूरी बना लेना है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। मुझे तो एंकरिंग करनी ही है, मुझे तो एक अच्छा स्पीकर बनना ही है, सो दैट इज योर कंपल्शन। जस्ट टेक योर एग्जांपल, आई वांट टू इंप्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल्स। नो, आप लोगों ने ये कोर्स इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि आई वांट टू इंप्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल्स, आई हैव टू, दैट इज योर कंपल्शन। हैव टू कैसे लगेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अब आपको इस चीज का, अगर आप वांट और डिजायर लेके चलोगे, व्हाट इट शोज, अरे नहीं भी हुआ तो क्या हुआ, काम चली जाएगा ना। आई वांट टू लर्न इंग्लिश, आई वांट टू लिसन रिकॉर्डिंग, नो, ये आपका वांट नहीं है, ये आपका कंपल्शन है, ओके। सो दूसरा यहाँ पे एक गलती और है, यहाँ पे लिखा है गुड फ्लुएंट।
दो चीजें एक साथ नहीं आएंगी. आई वांट टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बोल सकते हो, या फिर आई वांट टू बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकिंग एंकर बोल सकते हो. बोथ आर करेक्ट, लेकिन गुड और फ्लुएंट को आप एक साथ यूज मत करो. सो सर आई विल अचीव आवर गोल. नो नो नो, दैट इज नॉट माई गोल. मुझे एंकरिंग नहीं करनी, दैट इज योर गोल. सो आई विल अचीव योर गोल, आई विल अचीव माई गोल. यहाँ पे क्या आएगा? आई विल अचीव माई गोल विद द हेल्प ऑफ योर कोर्स. ओके, लेट मी चेक. I want to become an IAS officer. Lol. Good, good, good. Good. Now, if we talk about he, she, or it, we always use s or es, right? Wants लग जाएगा. To plus action. I made couple of sentences. एक बार हम लोग देख लेते हैं. I want to score good marks. What does it mean? आ जाए तो कोई, यानी कि चाहता हूं बस पढ़ाई लिखाई चाहे करनी पड़े या ना करनी पड़े. That is my desire. I want to score good marks. They want to go outside. अब ये क्या है? छोटे बच्चे होते हैं या फिर होते हैं, लोगों की आदत होती है, इवन इन लॉकडाउन, राइट? दे वांट टू गो आउटसाइड. कोई मजबूरी है क्या? अगर यदि घर पे रहेंगे तो भी लाइफ तो चली रही है ना, बट दैट इज नॉट देयर कंपल्शन, दैट इज ओनली देयर डिजायर, दैट दे वांट टू गो आउटसाइड. Kids want to play, right? That is also their desire. All these things are pretty simple, but still I want to cover all these things. That's why I took only 4 or 5 examples. But still, if you have any question, do ask me. You want to apply to this job? Job is not compulsion. सब कुछ अच्छा चल रहा है, but still person wants to apply. So you want to apply to this job, or we want to watch that movie. यानी ये सारी की सारी चीजें क्या है? All these things are your desire only. That is not compulsion. But मुझे desire compulsion वाला पूरा टॉपिक पढ़ाना था, इसीलिए I took example of want as well. But हम लोग इसको थोड़ा सा जल्दी ले लेते हैं. But still अगर आपको किसी भी सेंटेंस में डाउट आता है, do ask me. Okay, he wants to go outside. अब यहाँ पे मैंने क्या किया? I और we वाला देखा था. Now I took example of he वाले part. He wants to go outside. Those people who have some issues कि s कैसे लगा? So when you start reading the previous recording, you will get to know कि यहाँ पे हम लोगों ने he, she और it के साथ हम लोग क्या करते हैं? We always go with s और es. He wants to make video. अब that is compulsion, हाँ, लेकिन desire भी हो सकती है कई लोगों की. बनाएंगे कुछ दिक्कत थोड़ी ना है. I want to become good teacher. I want to become a good teacher. Okay, great, lovely. She wants to study abroad. All these things are desire. I want to go abroad, right? I want to buy this thing, right? I want to deliver lecture. All these things are your desire only. It wants to play. Dog के साथ मैंने बताया था, या फिर जो भी animals होते हैं उनके साथ what we use, it wants to play. Now the question is how to ask questions. Question ask का मतलब क्या होता है? बस I, we, you के साथ क्या आ जाता है? Do से हम लोग introduce करते हैं. Do plus I, you, we, they plus want to action, and does plus he, she, it plus want to action. You have to consider all these things and then start making sentences. If we go into the sentence formation, do you want to go there? Do you want to go there? Do you want to make videos? Do you want to discuss this problem? हम लोग suppose कीजिए जब when we started our lecture, right? Do you want to discuss this problem? Do you want to ask any question after 10:30? What I say? Do you want to ask any question? Do you want to ask any question? Is it your compulsion? No. This is desire only. Okay. I want to fly. Yes, good. All these things. Do I really want to meet him? Do I? कभी भी आप कोशिश करना, ये really I के साथ कभी questions बनते नहीं है. It always considered as a sarcasm. यानी कि टोन्ड फॉर्मेट में आता है. Do I really want to meet him? अब आप किसी से मिलने गए और आपके किसी फ्रेंड को खराब लगा, राइट? तो बोलेगा नहीं है, उससे नहीं मिलना. बोला अरे यार मेरा इंटरेस्ट थोड़ी ना है. Do I really want to meet him? Do I really want to meet him? Do they want to go for vacation? प्लान करते हैं लोग वेकेशन जाने का. Do they want to go for vacation or do we want to speak in English? Is it your compulsion? No, all these things are desire. इंग्लिश वाले को तो छोड़ ही दो. It is your compulsion. Okay. If we talk about the past state में क्या हो जाता है? Doesn't matter whether person is doer, he, she, it, you, we, they, कुछ भी हो, we always go with the second form. Wanted, to plus action. I wanted to watch that movie. You are talking about the past desire what you have. Past में आपकी अगर यदि कोई भी desire थी, वो आप लिख सकते हो किसमें? I wanted to, फिर उसके बाद action आ जाएगा और उसके बाद sentence formation होगा. He wanted to go outside. ये सारी की सारी चीजें क्या है? Past की desire है. सपोज कीजिए कोई बच्चा बाहर जाने के लिए बोल रहा है और आपने उसको रोक दिया. नाउ ही स्टार्टेड क्राइंग. घर वाले आते हैं, बोला क्यों रुला दिया इसको? बोला ये इधर उधर नाच रहा था. बोला वो बाहर जाना चाहता था. ही वांटेड टू गो आउटसाइड.
they wanted to apply to that university, they wanted to apply to that university. All these things are talking about the past. Past में क्या होता है, want और action second form. You wanted to meet him or we wanted to make videos. Or if we talk about, let me check. He wanted to become doctor. Do you want to visit school? Yes, yes, yes. Or do you want to visit school? Good, good, good. All these things. The people who are writing these sentences, ध्यान रखना, इन sentences को आप लोग जितने भी लोग लिख रहे हैं ना, इनको आप अपनी daily life से पूरा context बना के रखो. Sentences are pretty simple, ठीक है? Sentence बहुत simple है, लेकिन आप stories बनाओ, तभी आप इनको continue use कर पाओगे. Otherwise पता है क्या होगा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. और ये गलती जो आप बोलते हो ना कि सेंटेंस फॉर्मेशन में गलती होती है, वो यहीं पे गलती होती है. कैसे? लेट मी टेक एग्जांपल हियर. वन पर्सन रोट दिस एग्जांपल, डू यू वांट टू विजिट स्कूल. सेंटेंस सही है. अब क्यों मैं बोल रहा हूं, क्यों मैं इन चीजों को कंटिन्यू बता रहा हूं, राइट? आई कुड हैव स्किप्ड इट. मैं एक दो एग्जांपल लेके बोलता है ऐसे ऐसे बन जाएगा. नहीं, गलती यहीं पे होती है क्योंकि हम लोग कभी भी इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस ही नहीं करते. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. जो यहाँ पे एक सेंटेंस लिख के आया, डू यू वांट टू विजिट स्कूल. ध्यान रखना, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप तो कंटिन्यू बोलचाल में क्या बोलते हैं हम लोग, वी जनरली ईट डू. हम लोग ईट को खाई, डू को खाई जाते हैं. और हमारा बस फेशियल एक्सप्रेशन से हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि वी आर आस्किंग क्वेश्चन, यू वांट टू विजिट स्कूल, यू want to visit school. मैंने बोला ना बॉडी लैंग्वेज का रोल होता है, तो सामने वाला समझ जाता है द पर्सन इज आस्किंग क्वेश्चन, यू वांट टू विजिट स्कूल, यानी कि तुम्हें स्कूल विजिट करना है, यू वांट टू विजिट स्कूल. अब क्या हो गया, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है गलत सेंटेंसेस बोलने की कि हम लोग जब लिखने बैठते हैं तो हम लिखने में भी ये लगा देते हैं यू वांट टू विजिट स्कूल और क्वेश्चन मार्क. नो, सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या आएगा, पूरा डू आएगा. डू यू वांट टू विजिट स्कूल. तो क्या सर हम लोग बोलचाल में हम लोग कैन बी स्किप डू कर सकते हो, लेकिन ग्रामेटिकली इट इज रॉन्ग. मैंने बोला ना कोलोकियल इंग्लिश में बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है. आप लोग ये भी बोलोगे ना, यू वांट टू ईट समथिंग. क्या बोला मैंने, यू वांट टू ईट समथिंग, राइट? यू वांट टू ईट आइसक्रीम. अब आप क्वेश्चन ही पूछ रहे हो, बट ये क्वेश्चन गलत है. राइट क्वेश्चन क्या है, डू यू वांट टू ईट आइसक्रीम, डू यू वांट टू गो देयर, डू यू वांट टू अटेंड दैट मीटिंग. लेकिन बोलचाल में हम लोग डू को खा जाते हैं. आप लोगों को नहीं खाना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिसिंग एट योर होम एज वेल. ओके, बट यस, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ यू कैन फिट इन योर डेली कम्युनिकेशन. वो सारा का सारा आप फिट कर सकते हैं. इफ यू टॉक अबाउट द पास्ट, पास्ट में क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, डिड आ जाता है, IUV. नाउ वांट टू में वांटेड नहीं आएगा, बिकॉज वी टुक सेकंड फॉर्म इन डिड वाला पार्ट. इसमें सेकंड फॉर्म ऑलरेडी आ चुकी है. डिड आई वांट टू गो देयर, एब्सोल्युटली करेक्ट. डिड ही वांट टू गो आउटसाइड, डिड दे वांट टू अप्लाई टू दैट यूनिवर्सिटी, डिड यू वांट टू मीट हिम, डिड यू वांट टू ज्वाइन दैट लोकेशन. अब ये वाला चीज कैसे आ गया, all these example we discussed in the previous session. अभी हम लोगों ने जो देखा था ये वाला, हम लोगों ने किया क्या, इसी के क्वेश्चंस बना लिए सारे के सारे. ठीक है, तो इफ यू मेक क्वेश्चंस इनटू द पास्ट, हाउ डू वी मेक क्वेश्चन, वी इंट्रोड्यूस डिड प्लस आई यू वी दे प्लस वांट टू एंड प्लस एक्शन. डिड यू वांट टू जॉइन दैट लोकेशन. इसका मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन. सपोज कीजिए, लेट अस डिस्कस द स्टोरी. स्टोरी क्या है इसके बारे में, सपोज कीजिए आपके ऑफिस में कोई बंदा है, ठीक है, एंड ही वांटेड ट्रांसफर की, ट्रांसफर लेना चाहता था, बट things didn't work finally, और इस कारण he resigned the job. उसने कंपनी छोड़ दी finally. Now the question asked, आप लोग बैठे हुए हो कि why did he leave the company? Did he really want to join that location? Did he want to join that location? क्या वो लोकेशन ज्वाइन करना चाहता था? Did he want to join that location? अब क्या होता है, क्यों मैं इन चीजों को बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग बोलचाल में क्या करते हो गलती, he wanted to join that location. आप wanted लगा देते हो और फिर अपनी आंखों से इसको प्रूव करते हो कि ऐसा you are asking question, because we already know बॉडी लैंग्वेज का रोल होता है, बट राइटिंग में बॉडी लैंग्वेज थोड़ी ना दिखती है. इसीलिए यू हैव टू फॉलो ऑल दीज रूल्स, राइट? ग्रेट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. इफ देयर इज कंपल्शन, अभी हम लोगों ने जो सारी चीजें डिस्कस करी, दैट वाज ओनली योर विश. वो आपकी सिर्फ एक इच्छा थी, दैट वाज योर वांट, दैट वाज योर डिजायर ओनली. नाउ टॉक अबाउट द कंपल्शन. इफ देयर इज एन कंपल्शन, in that case we always go with have to plus action first form with I you we they. But if we talk about he she or it, we always go with has to plus action first form. Okay, let's make some sentences and we do practice. I have to speak in English only. ये sentence मैंने जानबूझ के लिखा है because that is your compulsion. आप ये नहीं बोल सकते I want to speak in English only. Reason being, you join this course, you are putting in so much efforts. आप कोशिश कर रहे हो because that's your compulsion. चाहे वो आपका
कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करना हो, बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, जॉब में अच्छा परफॉर्म करना हो, इंटरव्यू की तैयारी करनी हो, all these things, right, made you join this course. So all these things are the compulsion. अब compulsion क्या है? I have to speak in English only, and all these things we use into the present form only. जब हम लोग बात कर रहे हैं अभी की situation क्या है? I have to speak in English only. We have to make videos. If you don't make videos, right, things won't work. That's why we have to make videos, right? They have to complete this work by day end. Suppose कीजिए आपके बॉस ने बोला आपकी पूरी टीम को, right, कि सारे के सारे जितने भी लोग हैं, they have to complete this work by day end. That is all the compulsion. You have to study hard. Suppose कीजिए if you want to perform well in your examination, so there is only one option, and this is compulsion, and the compulsion is to study hard. So you have to study hard. She has to go deliver. Okay, she has to deliver आएगा. She has to deliver the speech. अब सपोज कीजिए आप और आपके फ्रेंड हैं, दोनों को स्पीच डिलीवर करना था, दोनों को 7 एफर्ट्स डालने थे. फाइनली क्या हो गया, आपकी तबीयत खराब हो गई एंड यू स्किप्ड इट. फाइनली इट्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब ये कंपल्शन है कि उसको स्पीच पूरी की पूरी डिलीवर खुद को ही करनी है. सो शी हैज टू डिलीवर द कंप्लीट स्पीच. अब यहाँ पे मैंने कंप्लीट क्यों लगाया, क्योंकि मैंने अभी आपको स्टोरी क्या सुनाई आपकी और आपकी फ्रेंड की, कि दोनों को मिलकर की स्पीच कंप्लीट करना था. फाइनली आप बीमार पड़ गए. नाउ इट्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो शी हैज टू डिलीवर द कंप्लीट स्पीच. ओके, अब आप बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की. ही हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये आप कैसे यूज कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू एनी सिचुएशन. चाहे अगर आप ऑफिस में हो, ऑफिस में उस पर्सन की क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये वाला काम करे. क्या काम कर सकता है, यू कैन फिट इट और यू कैन यूज इट अकॉर्डिंग टू योर ऑफिस, जैसे भी आप उसको यूज करना चाहो. एंड यू कैन यूज इट इन योर फैमिली एज वेल. इन फैमिली, राइट, आप अगर हस्बैंड हो, वाइफ हो, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर किड्स. ओके, he has to watch good content. क्यों मैंने बोला, आप लोगों को मैं हर बार बोलता हूं कि you have to watch, you have to consume good quality content. So that is your responsibility, that is your compulsion. नहीं करोगे तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे. You have to listen, watch recordings. Every time once the lecture completes, I always say कि please watch all the recordings. So you have to watch recording. That is your compulsion. Let me take water. Now we have to resolve this issue ASAP. यहाँ ये कहां पे यूज करेंगे हम लोग, लिसन केयरफुली. आपके ऑफिस में कोई अगर इशू आ जाता है जहां पे आपकी बात बढ़ रही है आगे जाके, तो वहां पे आपके इशू को वहीं की वहीं रिजॉल्व करना है. सो दैट इज योर कंपल्शन. वी हैव टू रिजॉल्व दिस इशू ASAP. ASAP का मतलब क्या होता है, 1% टाइप्ड हियर. लेट मी राइट as soon as possible. ओके, डोंट यूज शॉर्टकट. मैं यूज इसलिए करता हूं क्योंकि ये सेंटेंस बड़ा हो जाता है, फिर उसके सिंगल लाइन में आता नहीं है. छोटा हो जाएगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं. लेट मी चेक. एज सुन एज पॉसिबल. गुड. वी वांट टू गो टू ऑफिस. गुड. डोंट गो आउटसाइड. वी हैव टू फॉलो गवर्नमेंट गाइडलाइंस. यू कैन यूज इट. All the sentences are written into the present context only. Don't go outside because we have to follow government guidelines, and all these things are compulsion. Okay, we have to use masks, sanitizers. All these things are compulsion if we talk about the present context or present scenario. Okay, great. Now the question is how we can ask questions. Question कैसे आप कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं करना आपको. IUV, I have to होता है, बस उसको आप इंट्रोड्यूस कर दो किससे, do से. If you want to ask question why, where, who, what से क्वेश्चन पूछना है तो क्या करोगे, बस कुछ नहीं, उसको आप आके ले आओ. प्लस do प्लस I प्लस you प्लस we प्लस they प्लस have प्लस जितने भी प्लस have to प्लस action फर्स्ट फॉर्म. But if we talk about the person who is not available, he or she, ध्यान रखना यहां से गलतियां होना शुरू होती हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. That's why I covered everything, कि यहाँ पे सारी चीजें हम लोगों ने कवर की है. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द पर्सन ही और शी. ध्यान रखना हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत 10 से करते हैं, बट यहाँ पे हैज टू नहीं आएगा, यहाँ पे हैव टू आएगा. और यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, दे स्टार्ट स्पीकिंग डज ही हैज टू गो, और नहीं करते तो दे जनरली गेट स्टक. क्योंकि उनकी आदत क्या होती है, आई वी यू के साथ तो हैव लगाने की होती है, बट दे डोंट हैव एनी आइडिया कि ही और शी के साथ भी हैव आता है. कब आता है, व्हेन वी स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस. और क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, डज ही और शी प्लस हैव टू प्लस एक्शन प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, लेट्स मेक सम सेंटेंसेस. डू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, ये आपका पूछोगे. सपोज
the people who are joining our course, right? When they take our counseling session, we always say you have to speak in English only. So the first question come to their mind, do I have to speak in English only? Do I have to? Do I have to? फिर हम लोग बोलते हैं कि आपको वीडियोस बनाने, do you have to make videos daily? Yes, you have to. Do we want to नहीं आएगा, do we have to make videos daily? फिर उसके बाद अगर आप चाहो तो क्वेश्चंस बना सकते हो, do they have to complete this work by day end? If you are asking, if you are having conversation with your boss, आप पूछ सकते हो बॉस से कि do they have to work, complete this work by day end? ठीक है, मतलब आप बॉस से पूछ रहे हो कि कंपल्शन है कि आज ही वर्क कंप्लीट करना है या नहीं. डू यू हैव टू स्टडी हार्ड? नाउ यहां से चीजें चेंज होती है. डज शी हैव टू डिलीवर द स्पीच? ध्यान रखना, डज शी हैज टू नहीं आएगा. मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, द पीपल हु थिंक कि सर ईमेल राइटिंग में दिक्कत होती, यही चीजें हैं जो आपके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकती हैं. सो द सेंटेंस फॉर्मेशन वुड बी डज शी हैव टू, डज ही हैव टू, डज इट हैव टू प्लस एक्शन, वो आप फिट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. Does he have to take this responsibility? You can make sentences according to the context. Does he have to watch good quality content? Suppose कीजिए the person who joined our course, हम लोग बोलते हैं, suppose कीजिए उनके पेरेंट्स से बात हो रही है, फिर वो खुद बात करते हैं किससे, अपने जिनके लिए कोर्स ज्वाइन करवाया. Does he have to watch good content? Does he have to watch or does she have to watch English content, सारी की सारी चीजें. So the person is asking question about the compulsion, what second person is supposed to complete it. Okay. Do we have to resolve this issue ASAP? Do we have to follow government guidelines? ये कब पूछोगे? 22nd को लॉकडाउन हुआ था, अब 23rd को आप लोग पूछ सकते थे कि यार ये सारी की सारी गाइडलाइन फॉलो करनी है. Is it compulsion? Do we have to follow all these guidelines? और फिर दूसरा क्या आता है, do we have to use masks और sanitizer? गलती हम लोग कहाँ पे करते हैं, हम लोग do को खा जाते हैं. We have to use masks और sanitizer. हम लोग लुक ऐसा देते हैं कि सामने वाले को समझ में आ जाता है that the person is asking question, but grammatically it is wrong. The best way to answer, to ask question is always use do, does, where, how, and all these things. Okay. And how do you practice? Start making sentences. Okay. Do I have to work on this project? I took all, other example as well. Do they have to fire him? Suppose कीजिए person, doesn't follow their rule. So management decides कि यार इसको फायर ही करना है. So do they have to fire him? यानी क्या फायर करने की जरूरत है उसको? So is it their compulsion कि उसको फायर करना है उस बंदे को? So do they have to fire him? Does he have to make videos? Again, does use हो गया. Why do I have to work on this project? Why do I have to work on this project? इस प्रोजेक्ट पे मुझे ही काम क्यों करना है? Right? So we use the word why here. अगर आप देखोगे पीछे तो आप देखोगे नीचे मैंने ये वाला चीजें जो why वाला लिखाया है, इसी का सेंटेंस की मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है by taking couple of examples. Okay, great. There are so many people in this in the office. Why do you have to do this work? आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, और आप जाते हो, आपका जो फ्रेंड है वो क्या कर रहा है, वो लंच में भी लगा हुआ है काम के लिए, तो आप जाके बिल्कुल झल्लाओगे उसके ऊपर कि यार ऑफिस में इतने सारे लोग हैं, राइट, तुम ही हो क्या, तुम्हें ही क्यों करना है काम, राइट, तुम्हें ही क्यों काम करना है. इट शोज द कंपल्शन. व्हाई डू यू हैव टू डू, व्हाई डू यू हैव टू डू दिस. ये वाला डू ध्यान रखना, ये एक एक्शन है, और ये कौन सा है जो हम लोग शुरुआत में इनिशिएट करते हैं. इन दैट केस वी यूज डू. बोथ डू आर डिफरेंट. ओके. देयर आर वेरियस कॉलेजेस इन इंडिया. व्हाई डज ही हैव टू स्टडी इन दिस कॉलेज ओनली. बहुत लोगों को दिक्कत होती है, राइट, मुझे तो इसी कॉलेज में पढ़ना है. अब घर वाले क्या बोलते हैं, इतने सारे कॉलेज हैं, इसको इसी कॉलेज में क्यों पढ़ना है. व्हाई डज ही हैव टू स्टडी इन दिस कॉलेज ओनली. Why does he have to take admission in this college only? Why does he have to try in this college only? अब ये चीजें बोला ना, try, study और टेक, सारी की सारी चीजें, ये वही चीज मैंने बताया कि आप एक वर्ड के साथ कितने सारे वर्ड्स को सोच सकते हो. सो ये आपकी वोकैबुलरी को भी रिच करेगा. इट्स नॉट हिज मिस्टेक. व्हाई डज ही हैव टू से सॉरी. बहुत होता है, गलती उसकी नहीं है, वही सॉरी क्यों बोले, वही सॉरी क्यों बोले. क्यों सॉरी बोलने का क्या है, कंपल्शन है. व्हाई डज ही हैव टू से सॉरी. व्हाई डज ही have to say sorry. All these things are compulsion. Okay, you one, tell me what do I have to do. कई बार हम लोग बैट लगा लेते हैं, ठीक है, शर्त लगी और फाइनली सामने वाला जीत गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है भाई आप जीते. ओके, टेल मी व्हाट डू आई हैव टू डू. ये दोनों डू अलग अलग है. फर्स्ट वाला जो डू है वो क्या है, इट शोज द एक्शन, और सेकंड वाला डू कौन सा है, जो डू डस में हम लोग क्वेश्चंस में वैसे ही यूज करते हैं. ओके. वेयर डू यू हैव टू गो फॉर अ जॉब. किसी का अगर यदि जॉब लगता है तो हम लोग पूछते हैं, फिर ट्रांसफर होता है, फिर उसको दूसरे सिटी में जाना पड़ता है, हम लोग क्या बोलते हैं, वेयर डू यू हैव टू गो फॉर अ जॉब. जस्ट एक एग्जांपल ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस. हालत बहुत खराब है,
फाइनल ईयर में लोगों का प्लेसमेंट नहीं होता, उसके बाद क्या हम लोग बोलते हैं कि भाई अब कौन से सिटी में या फिर कहाँ जाना पड़ेगा, वेयर डू यू हैव टू गो फॉर जॉब, देन पर्सन से आई हैव टू गो टू बैंगलोर, आई हैव टू गो टू हैदराबाद, आई हैव टू गो टू मुंबई, राइट, टू फाइंड द जॉब, बट दैट वाज, इट शोज his or her compulsion. Okay, where does he have to apply for graduation? 12 कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद कहीं ना कहीं तो अप्लाई करना ही है ना, ठीक है, ग्रेजुएशन के लिए. इट्स हिज और हर कंपल्शन, बट वेयर डज ही हैव टू अप्लाई फॉर ग्रेजुएशन? ऑल दीज थिंग्स take your state, or you could think we are take into the question format where we talk about the present situation. Okay, now what about the past में क्या हो जाता है? पास्ट में ध्यान रखना हैड टू लग जाता है, और अब ये मत सोचना जैसे उसमें ही शी के साथ तो हैज लगता था, इसके अंदर इफ वी टॉक अबाउट द पास्ट, डजंट मैटर वेदर इट्स आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट कुछ भी हो, राइट, ऑलवेज गो विद हैड टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म. ओके, I just make some sentences. I had to go there. You showed that was the compulsion in past, right? कि मुझे वहां पे जाना जरूरी था. So it shows your commitment. It shows your compulsion in past. What you did, I had to go there. I had to go there. ध्यान रखना, और इसके अंदर और कहीं सेकंड थर्ड फॉर्म मत लगाने की सोचना. Always go with had to and action first form only. Okay, great. We had to attend that meeting. कहाँ पे थे यार? अरे हम लोग मीटिंग अटेंड कर रहे थे यार. कोई तुम भी यार क्या इतने मीटिंग अटेंड करते रहे? अरे नहीं, we had to attend that meeting. That was the compulsion. अब आप उसको अपने ऑफिस से लिंक कर सकते हो, आप अपने कॉलेज से लिंक कर सकते हो. It's up to you. He had to receive him. अरे उसको रिसीव करना ही था उस बंदे को, ठीक है. He had to receive him. She had to write that exam. Otherwise she would have failed. यूज हो गया. She would have, otherwise वो फेल हो जाती. So she had to write that exam. Right, you had to take the responsibility. तुम्हें तो responsibility लेनी ही थी. You had to take the responsibility. Okay, does it sound fast? आप लोगों को लग रहा है कि तेज चल रहा है, और it is good? If it is good, please type yes. Or if you want me to slow, please tell me. Good, good, good. Everything is clear? Good. Fair enough. Yes, yes, yes. All these things are pretty basic, लेकिन मेरे लिए कोई भी बेसिक नहीं है, क्योंकि मुझे तो सारी चीजें पढ़ानी ही है, राइट? इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी आफ्टर द वेबिनार कि सर ये वाला चीज समझ में नहीं आया, और प्लीज रिपीट इट, राइट? डजंट मैटर कि ये वाला कोई पॉइंट समझ में आया, चाहे मुझे कितनी भी स्लाइड समझानी पड़े, 10 से 15, आई विल कंप्लीट इट. ओके, लेट अस डिस्कस द पास्ट स्टेट. पास्ट स्टेट में मैंने क्या बताया था? Sometimes it's fast and sometimes it's okay. Good, good, good. So what you can do, where you just found कि थोड़ा सा तेज हो गया, just tell me after the webinar, I will repeat it. Okay, good. Let's talk about the past state. Past state की बात क्या करते हैं हम लोग? पास्ट स्टेट में जब भी हम लोग बात करते हैं, जिसमें हम लोग कंपल्शन की बात करते हैं, सो हम लोगों ने ये सारे के सारे अभी देखे थे, दैट शी हैड टू राइट दैट एग्जाम, यानी वो इसको एग्जाम देना था. दैट वाज हर कंपल्शन इन द पास्ट. पास्ट में कुछ हैज हैव नहीं लगता, बस आप आंख बंद करके हैड टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म लगाओ एंड स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस. ओके, ग्रेट. नाउ अगेन दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट. ध्यान रखना उसके अंदर के कोई क्वेश्चन, अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसमें भी वही होता है. डिड आ जाएगा, उसके बाद अगर ये सब आ रहा है, व्हेन, व्हाई, वेयर सब कुछ आ रहा है, तो डिड के इमीडिएट बाद आ जाता है. अदरवाइज आई, वी, यू, दे प्लस प्लस प्लस. प्लीज नोटिस वी यूज हैव. डिड यू हैड टू कभी मत बोल देना. अब इस सेंटेंस को गलती का करते हैं लोग, ठीक है. डिड आई हैड टू go there, it is absolutely wrong. ठीक है, did I had to go there गलत है, ऊपर वाला सही है, ठीक है. this one is right. did I have to go there, this one is right. okay, और this one is wrong. ठीक है, रेड वाला जो है वो रॉन्ग है, राइट? क्योंकि जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिड प्लस आई, चाहे हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, प्लस दे हो, चाहे इट हो, कुछ भी हो, ऑलवेज डिड प्लस ऑल दीज थिंग्स प्लस हैव टू प्लस एक्शन. ओके, सो लेट मी डिलीट इट. इसको मैं एक बार के लिए इरेज कर देता हूँ सारा. इट्स फाइनली डन. और इसका हाईलाइट भी हटा देते हैं.
Good. Did we have to attend that meeting? All these things are the compulsion. Did we have to attend that meeting? आप मीटिंग में गए, बैठे 3-4 घंटे और हो गए पूरी तरीके से बोर। जब आप बाहर निकल कर आए, यार मीटिंग वास्तव में अटेंड करना जरूरी था क्या? डिड वी हैव टू अटेंड दैट मीटिंग? ऐसी ही सिचुएशन बनती है। एक सेंटेंस उसके ऊपर स्टोरी बनने में बहुत टाइम लग जाता है। आप लोग हमेशा ऐसे ही करो, स्टोरीज बनाओ और उसके ऊपर आप सेंटेंसेस थ्रो करना शुरू करो। डिड ही हैव टू, डिड ही हैव टू रिसीव हिम, ध्यान रखना डिड ही हैज टू मत लगा देना। मैं आपको बता रहा हूं दीज आर द प्लेसेस वेयर पीपल कमिट मिस्टेक। ये गलत है हैज टू, ठीक है, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसको भी मैं एक बार के लिए बोल्ड में बता देता हूं, डिड ही हैव टू receive him. This one is did he has to, this one is absolutely wrong. Let's make it red. ये गलत है और नीचे वाला सही है। Okay, now let me undo it. Good. Now let's make more sentences. Did you have to take the responsibility? The same thing. आप अपने बोल सकते हो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की तुम्हें जरूरत थी क्या, या तुम्हें बहुत वो था क्या, मजबूरी था क्या? डिड यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा, वेयर डिड ही हैव टू गो, वेयर डिड ही हैव टू गो, उसको कहां पे जाने की जरूरत पड़ी, राइट, वेयर डिड ही हैव टू गो। ऑल दीज थिंग्स आर कंपल्शन। मैंने जितने सेंटेंसेस लिखे हैं ना, आई कुड हैव रिटन 2 or 3 सेंटेंसेस, बट आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाए। और इफ यू हैव नोटिस्ड, आई यूज सो मेनी एग्जांपल ऑफ ही हैव। ये जितने भी ही हैव के एग्जांपल लिए, ज्यादा एग्जांपल इसके क्यों लिए? बिकॉज आई नो दिस इज द प्लेस वेयर पीपल मेक सो मेनी मिस्टेक्स, राइट। वेयर डिड दे हैव टू लीव द जॉब, वेयर डिड दे हैव टू लीव द जॉब, और व्हाई डिड दे हैव लीव द जॉब, व्हाट डज इट मीन? उन्हें नौकरी छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई डिड दे हैव टू लीव दैट पर्टिकुलर जॉब, और व्हाई डिड ही हैव टू फॉलो, व्हाई डिड वी हैव टू फॉलो लॉकडाउन, क्यों फॉलो करना पड़ा हम लोगों को? चीजें तो बढ़िया थी ना, अरे नहीं करते तो कोरोना कोविड चल ही रहा था। सो व्हाई डिड वी हैव टू फॉलो लॉकडाउन? ऑल दीज क्वेश्चंस, राइट, कैन बी आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ पास्ट कंपल्शन। ओके, नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। लेट मी टेक सम वाटर, क्योंकि अब जो आपके पास चीज आने वाला है, ये जितनी चीजें मैंने पढ़ाया, यू मस्ट हैव स्टडीड इन पास्ट, आपने ये सब चीजें पढ़ी भी होंगी, ठीक है। आप लोगों ने वांट डिजायर भी यूज किया है, आपने हैज टू, हैव टू, हैड टू भी यूज किया है। जहां जहां पे आप लोगों को गलती हो रही थी वो भी मैंने पूरा रिपीट कर दिया लेक्चर, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, अदरवाइज आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। बट जो मेन चीज मैं आपको, जो बीच वाला भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, प्लीज 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 लुक एट द स्लाइड वेयर इट इज रिटन देयर इज नो डिजायर एंड देयर इज नो कंपल्शन। यानी ना तो डिजायर है और ना कंपल्शन है, इसके बीच में भी एक चीज होती है, और वो कौन सी चीज होती है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, लोग या तो वांट टू में चले जाते हैं या फिर हैज टू, हैव टू में चले जाते हैं। रीजन क्या है? दे डोंट हैव एनी आइडिया हाउ वी कैन मेक सेंटेंसेस। ओके, ये मैंने आपको स्लाइड इसीलिए दिखाया है क्योंकि इस स्लाइड के अंदर जो मैं चीजें बताऊंगा वही आपका नेक्स्ट वाला पार्ट है। लिसन इट वेरी केयरफुली, ध्यान रखना। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। सपोज कीजिए आप अपने एक फ्रेंड के साथ बैठे हुए हैं। लिसन इट केयरफुली, बस ये एक स्टोरी समझ में आ गया ना, सारे सेंटेंसेस समझ में आ जाएंगे। प्लीज लिसन इट केयरफुली। आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हुए हैं उसके घर पे, राइट, यू आर हैविंग टी और कॉफी। लेट मी टेक वाटर फर्स्ट। गुड। अब क्या है, वहां पे आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हुए वहां पे, और फाइनली आपने टाइम देखा, 5 बज गए। 5 बज गए। अभी का मैं आपको सिचुएशन देता हूं कि 7 से 7 का लॉकडाउन है। प्लीज लिसन इट केयरफुली। 7 to 7 बजे तक का लॉकडाउन है, ठीक है, जो टाइमिंग दे रखा है। तो आपने सोचा चलो मैं फ्रेंड के घर चले जाता हूँ, और आपके बजे हैं वहां पे 5 बज चुके हैं आपकी घड़ी में। आपने टाइम देखा और आपने अपने फ्रेंड को बोला कि चलो यार मुझे जाना है। प्लीज 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 लिसन इट वेरी केयरफुली। आपने बोला मुझे जाना है। यू हैव 2 ऑप्शंस, और यही 2 ऑप्शंस लेके लोग अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी आइडिया हाउ टू मेक सेंटेंसेस। मुझे जाना है, मुझे जाना है। नाउ पीपल से आई वांट टू गो या फिर आई हैव टू गो, बोथ आर रॉन्ग, राइट, बिकॉज दैट्स नॉट योर कंपल्शन। मुझे जाना है,
मुझे जाना है, मुझे जाना है। आई रिपीटेड 3 times। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज नीदर योर डिजायर नॉर योर कंपल्शन। इन तरीके की जो सेंटेंसेस बनते हैं या फिर इन तरह की जो सिचुएशंस होती हैं, राइट, वी ऑलवेज यूज ईदर इज, आर, एम, टू। लिसन इट वेरी केयरफुली। इज, आर, एम, टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। यानी कि मुझे जाना है, आई एम टू गो, राइट, उसे जाना है, ही इज टू गो, हम दोनों को जाना है, वी आर टू गो, हम सबको जाना है, वी आर टू गो, उन लोगों को जाना है, दे आर टू गो, राइट, मुझे जाना है, आई एम टू गो, उसको जाना है, ही इज टू गो। ऐसे सेंटेंसेस कब बनते हैं? व्हेन देयर इज नो कंपल्शन, या फिर जहां पे कोई वांट और डिजायर ना हो। 5 बजे की बात है ना, कंपल्शन कब होगा? जब वहां पे 7 बज चुके होंगे, तब यही सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आई हैव टू गो। और लोग क्या गलती करते हैं? 5 बजती वो लोग ये बोल देते हैं आई एम टू गो, ओ सॉरी, आई हैव टू गो बोल देंगे, या फिर आई वांट टू गो बोल देंगे। रीजन क्या है? दे डोंट हैव एनी आइडिया कि हम लोग इज टू, आर टू, एम टू को भी यूज कर सकते हैं इनटू द प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट की तो बात है, पास्ट में क्या होगा हम लोग देख लेंगे, बट अभी आपको फोकस किस पे करना है? इफ यू टॉक अबाउट द करेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिनेरियो, इज टू, आर टू, एम टू यूज होता है प्लस एक्शन यूज होता है। ओके, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं कई बार बोलता हूं, इसीलिए मैंने बोला कई सेंटेंसेस में आप लोगों के साथ आपको बिना पढ़ाए क्यों यूज करता हूं? क्योंकि जिस दिन वो लेक्चर होगा उस दिन वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। यू मस्ट हैव नोटिस्ड, मैंने कई बार चीजें बोला है कि whenever I am to deliver or whenever I am to speak a particular topic, whenever I am to speak, तो क्या मेरा कंपल्शन है क्या? जब मुझे बोलना होता है, जब मुझे बोलना होता है, जब मुझे बोलना होता है, हम क्या बोलते हैं? आई एम टू स्पीक, आई एम टू स्पीक। ध्यान रखना, जितने लोग ट्रांसलेशन करते रहते हैं ना, ये सब चीजें सब अटक जाएंगे इन चीजों में। अब हमें नहीं अटकना, बिकॉज वी ऑलवेज क्रिएट स्टोरीज। स्टोरी कौन सी सुनाई थी मैंने? लॉकडाउन वाली। इन दैट केस वी यूज इज टू, आर टू, एम टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। आपको बोलना है, किसको बोलना है? अरे आपको बोलना है, यू आर टू स्पीक। क्या कंपल्शन है क्या? नहीं, कोई कंपल्शन नहीं है। कंपल्शन होता तो क्या आता? यू हैव टू स्पीक। और बोलने की अगर इच्छा होती तो क्या आता? यू वांट टू स्पीक। आपको तो सिर्फ बोलना है, मुझे तो बोलना है, आई एम टू स्पीक, यू आर टू स्पीक, वी आर टू स्पीक। यू कैन मेक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस जहां पे कोई कंपल्शन नहीं है, बस मुझे जो काम करना है, जाना है, खाना है, पीना है, मुझे खाना है, राइट, आई एम टू ईट। अब हम लोग क्या करते हैं? नहीं पता होता तो या तो बोलेंगे आई वांट टू ईट या फिर आई हैव टू ईट, लेकिन दैट्स नॉट योर कंपल्शन, राइट, और नॉर योर वांट और डिजायर। सो आई एम टू ईट, आई एम टू गो, आई एम टू लिसन, आई एम टू वॉच, आई एम टू राइड, आई एम टू ड्राइव। जो चीजें आप बोल सकते हो उस पर आप सेंटेंसेस बना सकते हो, राइट। आई विल टेक 5 और 7 मोर मिनट्स, ठीक है, 5 से 7 मिनट में ज्यादा लूंगा ताकि हम लोग इस चीज को कवर कर ले, बिकॉज दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है, एंड आई होप यू अलाउ मी, आई होप यू अलाउ मी, आई होप यू अलाउ मी, आई होप यू अलाउ मी। इफ इट इज कंफर्टेबल प्लीज टाइप yes if you are comfortable. Yes, good, great, fair enough, lovely। क्योंकि यार आप एक बार के लिए समझ गए ना, क्योंकि हैज टू हैव टू यू ऑलरेडी न्यू, वांट टू वाला पार्ट आपको आता ही था। नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली। मैंने आपको क्या बोला था? आई होप यू अलाउ मी, आई होप यू अलाउ मी, आई होप यू अलाउ मी। आई स्पोक 3 times। होप के साथ मैंने क्या बोला? दिस इज माई होप फ्रॉम यू गाइज कि आप मुझे अलाउ करोगे। मैंने ये नहीं बोला आई होप यू विल अलाउ मी, बिकॉज होप के साथ क्या होता है? वी ऑलवेज मेक सेंटेंस इन प्रेजेंट ओनली। सो आई होप यू अलाउ मी। अगर मैं किसी भी पर्सन का नाम लूं, आई होप ही अलाउज मी, आई होप शी अलाउज मी, आई होप दे अलाउ मी, आई होप यू अलाउ मी। दिस इज द लेवल ऑफ एक्यूरेसी व्हाट आई एम सीकिंग फ्रॉम यू गाइज एज वेल। तो ये क्या सर कोई बहुत बड़ी बात है? नहीं, राइट। सारी की सारी चीजों में होप और विश के बारे में मैंने आपको बताया कि होप के अंदर क्या होता है? व्हेनेवर वी आर टू मेक सेंटेंस, अब निकला ना वी आर टू, जब भी हमें सेंटेंस बनाना है वी आर टू मेक सेंटेंस। मुझे सेंटेंस बनाने की इच्छा होती है तो मैं वी वांट टू बोलूंगा। इफ इट इज कंपल्शन वी हैव टू। लेकिन जब मैं आपको अभी मैं होप के बारे में क्या बता रहा था कि व्हेनेवर वी मेक सेंटेंस और व्हेनेवर वी यूज होप इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर, वी ऑलवेज स्पीक इन द प्रेजेंट ओनली। आई होप इट क्लियर्ड। ओके, ग्रेट। So these are the sentences I have discussed. I am to change the job. No, ये तो अभी हुआ ही नहीं है ना। I am to change the job. ये क्या है? You are talking about the your job changing. अभी आपकी जॉब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन आप स्टिल चाहते हो कि यार चेंज देख रहे हो आप जॉब में।
सो आई एम टू चेंज द जॉब, मुझे जॉब चेंज करना है. इट इज नॉट योर कंपल्शन. कंपल्शन कब होगा? जब या तो बॉस खराब होगा या फिर ग्रोथ नहीं मिल रही होगी. इन दैट केस दैट वुड बी योर यानी कंपल्शन. बट अभी क्या है? मुझे जॉब चेंज करना है. आई एम टू चेंज द जॉब. ही इज टू गो देयर, उसे वहां पे जाना है. इज इट कंपल्शन? नो, एब्सोल्युटली नॉट. बस जाना है. अब कंपल्शन होगा तो ही हैज टू होगा, और ऐसे ही जाना होगा तो ही वांट्स टू गो होगा. बट अभी क्या है? बस जाना है. ही हैज टू गो देयर. और अभी आई एम टू गो नाउ, मैंने एग्जांपल लिया ही आप लोगों का कि आई एम टू गो नाउ, मुझे जाना है. और आप इसकी जगह क्या बोल सकते हो? आई एम टू लीव नाउ, और वी आर टू फॉलो द गवर्नमेंट गाइडलाइंस. अब वी आर टू फॉलो द गवर्नमेंट गाइडलाइंस की बात क्या है? 22 ऑफ मार्च से पहले अगर आप 17-18 मार्च की बात करोगे ना, अभी आप लोगों ने जो हैज टू हैव टू पढ़ा है ना, अब आपको समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है. 16 और 17 मार्च तक लॉकडाउन नहीं था, कंट्री में हालात इतने बिगड़े भी नहीं थे. ठीक है, हाँ समझ में आ रहा था कि कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं, ट्रीट हो रहे हैं, काफी खबरें भी फैलने लगी थी, लेकिन गवर्नमेंट बार बार बोल रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग करो. कोई वहां पे लॉकडाउन उस टाइम पे नहीं हुआ था. तो आप और मैं बैठ के क्या बात कर रहे हैं? हाँ यार, गवर्नमेंट का जो लॉकडाउन है ना वो फॉलो करना है. वी आर टू फॉलो. इज इट योर कंपल्शन? नो, एब्सोल्युटली नॉट. गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करनी है, हाँ करनी है, बट दैट वाज नॉट योर कंपल्शन. लेकिन आफ्टर 22 ऑफ मार्च वी हैव टू फॉलो. वी हैव टू फॉलो. उससे पहले क्या था? देयर इज नो कंपल्शन. हाँ करना है. वी आर टू फॉलो. दूसरा, दे आर टू मीट हिम, उन्हें उससे मिलना है. कंपल्शन? एब्सोल्युटली नॉट. बस मिलना है. दे आर टू मीट हिम. आई एम टू टीच दिस टॉपिक. जस्ट टेक माई एग्जाम्पल. सपोज कीजिए मेरे को ये वाला टॉपिक पढ़ाना है. लिसन इट वेरी केयरफुली. मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ाना है. आई एम टू टीच दिस टॉपिक. मुझे टॉपिक पढ़ाना ही है. आई हैव टू टीच दिस टॉपिक. और मन है कि ये टॉपिक पढ़ाऊं. आई वॉन्ट टू टीच दिस टॉपिक. यही है डिफरेंस. वांट के अंदर इज टू, आर टू, एम टू, और कंपल्शन तो बिल्कुल हाई लेवल पे चले जाता है. ओके, डोंट डिस्टर्ब हर, शी इज टू मेक वीडियो. अब कोई है जो वहां पे वीडियो बना रही है और घर वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं, नहीं उसको डिस्टर्ब मत करो, उसको वीडियो बनाना है. शी इज टू मेक वीडियोस. शी इज टू मेक वीडियोस. क्यों बोला शी इज टू मेक? इट्स नॉट हर कंपल्शन. अगर कंपल्शन होगा तो शी हैज टू मेक वीडियो भी लगा सकते हैं. ओके, आई एम टू रिवाइज द लेक्चर. इज इट कंपल्शन? नो, नॉट कंपल्शन. मैं कोई आप लोगों को बोलता हूँ क्या कि पढ़ो 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 पढ़ो? नो, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर मेच्योर इनफ. आप लोग सब मेच्योर हो. तो यहाँ पे क्या आता है? आई एम टू रिवाइज द लेक्चर. बट मैं चाहता हूं ये एम टू जल्दी आप लोगों के हैव टू रिवाइज में आ जाए, या आई एम टू मेक वीडियोस किसमें कन्वर्ट हो जाए? आई हैव टू मेक वीडियोस. ओके, इन पास्ट. अब पास्ट में भी तो चीजें होंगी. अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो, कंपल्शन और नहीं है और वांटेड डिजायर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इन पास्ट स्टेट वी टेक एग्जांपल ऑफ वाज टू और वर टू. आई के साथ क्या, जो आई और ही और शी के साथ क्या हो जाता है? आई वाज टू, शी वाज टू, ही वाज टू, प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म. और इफ यू टॉक अबाउट द आई और वी, आई और ये वी यू और इनके साथ, दे के साथ, वी यूज वर टू. वी यू टू प्लस वर टू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म. वही है. Let's take some example. I was to change the job. मुझे जॉब चेंज करना था. I was to change the job. That's why I left that company. I was to attend the class, so I missed the party. कई आपको लोगों के फ्रेंड ने बोला, अरे यार तो पार्टी में नहीं आया. अरे यार कैसे आता? मुझे क्लास अटेंड करनी थी. मुझे क्लास अटेंड करनी थी. I was to attend the class, so I missed the party. He was to come here. उसे यहाँ पे आना था. Was it his compulsion? Absolutely not. But he was to come here. I was to leave. यार मुझे जाना तो था. Okay, let's make this sentence more interesting. I was to leave, but it started raining. यार जाना तो था लेकिन बारिश शुरू हो गई. I was to leave, but it started raining. They were to go for outing. उनको आउटिंग पे जाना था. Is it their compulsion? No, कोई कंपल्शन थोड़ी ना है. सो क्या हो जाएगा? Was to, were to, और they were to go for outing. You were to revise the lecture. अब सपोज कीजिए इसके ऊपर एक स्टोरी सुनाते हैं. You were to revise the lecture. टाइम क्या हो गया? आपके पास रिकॉर्डिंग आया, आपने लेक्चर सुना. आप लोगों ने लेक्चर सुना, सुन लिया आपने. उनमें से कुछ लोगों ने लेक्चर नहीं सुना. क्लास में आप अटेंड करे आए, क्लास में आप बैठे आकर. ठीक है, अब क्या हो गया कि मैंने पूछा आप लोगों से कि आप लोगों ने लेक्चर रिवाइज किया था. Some of them said, yes sir, we revised the lecture. Some say, sir, I was to revise the lecture, but I couldn't. I was to revise the lecture. Sir, revise करना तो था, but नहीं कर पाया. I was to revise the lecture, but I couldn't. So ऐसी stories बनेगी इसके ऊपर. We were to complete the work in time. काम हमको पूरा का पूरा उसके अंदर अपना डेडलाइन के अंदर कंप्लीट करना था, but you might have faced some issues, इसलिए आप उसको एक्सटेंड करना पड़ा डेडलाइन को. Right, so we were to complete the work in time, but we couldn't.
but we लेकिन आपने वो काम करना ही पड़ा, आपने पूरा कंप्लीट ही किया, सो वी हैड टू कंप्लीट आ जाएगा, बट आपको करना था, वी वर टू कंप्लीट. So these things we discussed today. Let me revise you all these things. First of all, this is the quote of the day, what we have to use or we have to follow this thing. The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees opportunity in every difficulty. Who said? Winston Churchill. Please, please, please note down all these things. The pessimist sees, because pessimist is the single person. And the optimist sees difficulty in every opportunity in every difficulty. आज से क्या आप लोग जितने भी लेक्चर पढ़ रहे हो, प्लीज 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 आप लोग इस लेवल का देखा करो. ओके ओके, व्हाई डज इट यूज एस और ईएस, व्हाई डज ही यूज एस और ईएस, इसमें ऐसी चीज क्यों लिखा है, व्हाई इट इज रिटन एस और ईएस. जितनी भी आप चीजें पढ़ोगे ना, आप लोगों को कंटिन्यू दिमाग चलना शुरू होगा. रीजन क्या है? वी डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग इन क्लास. सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, बट आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है. And if we talk about the vocabulary of the day, this word we will discuss day after tomorrow. परसों इस वर्ड को डिस्कस करेंगे. vocabulary of the day क्या है? Instigate. 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 Please take the screenshot. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपको कल तक मिलेगी लेट. उससे पहले आप इसका एक बार vocabulary को करके आप कम से कम अपना होमवर्क वाला पार्ट तो कंप्लीट कर लो. Now let us discuss about the question and answer. क्वेश्चन आंसर आप लोग पूछ सकते हो. आई एम ओपन टू टेक एनी क्वेश्चन. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट एग्जैक्टली वी स्टडीड टुडे. वी डिस्कस्ड 3 थिंग्स. कौन कौन सी हम लोगों ने पढ़ी थी? डिजायर पढ़े थे, वांट्स के बारे में पढ़ा था. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बहुत ज्यादा कंपल्शन, दैट वाज हैज टू और हैव टू और हैड टू अकॉर्डिंग टू द स्टेट. इफ देयर इज प्रेजेंट देन वी यूज only wants or want according to the doer. If we talk about the past, in that case we use action second form, that is wanted to plus action फर्स्ट फॉर्म. वांटेड में सेकंड फॉर्म लग चुका है, इसलिए एक्शन में कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा. ओनली एक्शन इंक्लूड्स. ओके, वी मेड लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस जस्ट लाइक आई वांट टू गो देयर, दैट इज माय नीड ओनली. आई वांट टू मीट माय फ्रेंड, दैट इज द ओनली माय नीड. लेकिन मेरा फ्रेंड सपोज करो किसी ट्रबल में है, in that case I have to meet him because that is my compulsion and I am supposed to help him. In that case I have to go there, I have to help him, I have to meet him. All these things are compulsion. But if you talk about the past, past में क्या हो जाएगा? I had to meet him. मुझे उससे मिलना पड़ा because that was the compulsion. I had to go there. All these things are compulsion in past. We made questions. Did I have to? Do I have to? Does I have to? Main focus आपको ये करना है. If we talk about, if we make sentences into the present format में अगर आप questions बनाते हो और खास करके he और she के साथ, you have to take extra care. The sentences start with does plus he or she plus have. Don't commit this mistake. I am repeating the complete lecture again and again and again and again. Why? Because I know these are the places where people commit mistakes which you are not supposed to do. यहाँ पे कुछ गलतियां हैं जो लोग करते हैं, आपको गलती नहीं करनी है. ओके, अब नाउ लिसन वेरी केयरफुली. और जो दूसरा पॉइंट आपको बताना है इसके अंदर, ये वाला डज वाला पार्ट हो गया. नाउ जो सेकंड पार्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, व्हेन देयर इज नो कंपल्शन देन देयर इज नो डिजायर. In that case, we use is to, are to, am to according to the present state. मुझे जाना है, I am to go there. मुझे वीडियो बनाना है, I am to make video. I am giving you one example. Suppose right now it's 11:45. 4 मिनट कम है 11:15 बजने में. अभी में आपका लेक्चर कंप्लीट होता है और आपके घर वाले बोलते हैं कि ओके चलो खाना खा लो, इट्स टाइम फॉर डिनर. आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, अभी खाना नहीं खाना, अभी मुझे वीडियो बनाना है. I am to make videos. I am creating the complete story. ठीक है, आपने रियल स्टोरी ढंग से सुनना. क्यों वीडियो बनाना है? क्योंकि मैंने डेडलाइन दे दी, 12 बजे तक रात को वीडियो आ जाना चाहिए आपका. अब क्या है, अभी बजे हैं 11:15. घर वाले बोल रहे हैं खाना खा लो, आपके पास ऑप्शन है आई एम टू मेक वीडियोस. आपके घर वालों ने को बोला, आपने घर वालों ने बोला अरे 5 मिनट का तो वीडियो, क्या 2 मिनट का तो वीडियो होता है, ठीक है खाना खा के आराम से बना लेना, 12 बजे का टाइम है ना. आपने भी घर वालों की बात फाइनली मान ली. ठीक है, यू टुक योर डिनर, आपने खाना खाया, खाना खाते ही आपको आई नींद. ठीक है, और नींद कब खुली? एकदम से आपकी नींद खुली 11:15 बजे. ठीक है, और डेडलाइन थी 12 बजे की. आप झटके से एकदम से उठे, फाइनली यू वोक अप एंड यू रियलाइज्ड, यू सिंपली लुक्ड एट द वॉच, टाइम क्या हुआ था? ओ माय गॉड, 11:45 हो गए, 11:15 हो गए, मुझे वीडियो बनाना है. नाउ इट्स योर कंपल्शन.
अब सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव टू मेक वीडियोस, आई हैव टू मेक वीडियोस। क्यों, टाइम कम है, फटाफट फटाफट मुझे वीडियो बनाना है। अब आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, सो दैट इज योर compulsion. So I have to make videos, I have to prepare topic, all these things depend upon to the context. 12 भी बज गए, ठीक है, और आप एकदम से उठे, नींद खुली आपकी, और आपने क्या देखा, अरे यार 12:15 बजे हो गए, अरे यार आई वॉज टू मेक वीडियो, मुझे वीडियो बनाना था, आई वॉज टू मेक वीडियो बट आई स्लेप्ट, मैं सो गया। तो ये सारी की सारी चीजें आज हम लोगों ने देखी हैं। आप लोगों ने जितनी चीजें आप लोगों को पता चली होगी, जो गलती वाली मैंने जगह बताई है, कौन कौन सी गलती है, कभी भी डज, ये ही शी और इट के साथ इफ यू आस्क क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ कंपल्शन, ऑलवेज यूज हैव टू, सबसे बड़ी गलती ये वाली होती है। दूसरी गलती क्या होती है, इफ यू मेक सेंटेंसेस इन टर्म्स ऑफ पास्ट in compulsion had to, and if you start asking questions use did plus have to आ जाता है, doesn't matter whether it's he she it you we they, कुछ भी हो, did you have to go there, did he have to go there, did we have to go there, did they have to go there, did it have to go to there, did she have to go to there, ये सारी की सारी चीजें किसमें है, doesn't matter whether the person is he she it you we they, always use in terms of question, start with the did और why where जो भी आप लगा सकते हो वो लग जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या आती है, has to नहीं आएगा, right? आएगा क्या, have to. Now if you want to ask any questions you could ask me, those who have joined in the previous class, if you have read a particular, if you watched or if you listened, if you read any slide, if you want to ask any question you could ask me. Okay, good, ask. और इसको इसी लेक्चर में किसी को प्रॉब्लम है वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर की कोई भी प्रॉब्लम हो वो पूछ सकते हैं, राइट? इवन लेक्चर 1 में प्रॉब्लम है वो भी पूछ सकते हैं, बट आस्क क्वेश्चंस, ओके? सर डाउट टाइमिंग कुछ भी नहीं होता, राइट? यू कैन आस्क क्वेश्चंस एनी टाइम, जब तक आपका चल डाउट नहीं होगा तब तक हम लोग पूरे आंसर देते रहेंगे, नो नीड टू वरी। सर आई लव योर कमिटमेंट, गुड गुड गुड, बट अब आपको कमिटमेंट दिखाना है। शुड कुड वुड के मेक सेंटेंस मेकिंग में कंफ्यूजन होता है, ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, ठीक है? जिन जिन लोगों को इसमें भी दिक्कत आती थी, ओके, दोज हु वांट टू लीव की लगता है कि पुराना वाला रिपीट होगा, वो लोग अभी जा सकते हैं, और जिनको अभी लगता है कि चलो हम लोग और सीख लेते हैं, सो यू कुड अटेंड कंटिन्यू, अदरवाइज आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आपको आज वाले में पूछना है तो आप आज भी पूछ सकते हो, पुराने डाउट्स है वो भी पूछ सकते हैं, ओके? वन पर्सन आज शुड कुड वुड के सेंटेंस मेकिंग में कंफ्यूजन होता है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि आपको मैंने शुड कुड वुड पढ़ाया ही नहीं है, मैंने पढ़ाया आपको शुड हैव, वुड हैव एंड कुड हैव। लिसन टू वेरी केयरफुली, मैंने आपको शुड अकेला नहीं पढ़ाया, मैंने क्या पढ़ाया आपको, शुड हैव, कुड हैव एंड वुड हैव। ऑल दीज थिंग्स आर रिग्रेट के पार्ट में होते हैं। अब रिग्रेट में क्या है, सपोज कीजिए, एक एक एग्जांपल लेके मैं आपको क्लियर करता हूं, मुझे वीडियो बनाना चाहिए था, दैट इज योर रिग्रेट। आई शुड हैव मेड वीडियो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, शुड हैव, कुड हैव एंड वुड हैव प्लस एक्शन, विच फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मुझे वीडियो बनाना चाहिए था, आई शुड हैव मेड वीडियोस। अभी तो आपने तो चलिए पूछ लिया डाउट, कोई और पूछे नहीं, वो क्या रियलाइज करेगा रात को सोते वक्त, अरे यार आई शुड हैव आस्क्ड दिस डाउट, आई शुड हैव आस्क्ड दिस डाउट। ध्यान रखना, मैं आपको बोल रहा हूं आई शुड हैव आस्क्ड दिस डाउट, लेट मी राइट दिस हियर, आई शुड हैव आस्क्ड दिस डाउट। ध्यान रखना, बोलते वक्त आस्क की आवाज निकलती है, बट राइटिंग में आपको याद रखना है मैं पूरा आस्क बोल रहा हूँ। रीजन क्या है, ऐसे कोई नहीं बोलता आई शुड हैव आस्क्ड, आई शुड हैव आस्क्ड, ये नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं, आई शुड हैव आस्क्ड, आई शुड हैव आस्क्ड, लेकिन लिखते वक्त समझ में आ जाता है कि ईडी है। ये तो हो गया शुड हैव का। सपोज कीजिए जैसे ही वेबिनार एंड हुआ तुरंत आपके दिमाग में एक वेव आई, अरे यार डाउट तो मैं भी पूछ सकता था, सूखती थी, दैट वाज योर पास्ट कैपेबिलिटी बट यू डिडंट आस्क। उसमें क्या जाता है, आई कुड हैव। अब तो ना पूछ सकते, वेबिनार एंड हो गया ना, ठीक है? अब कब पूछेंगे, परसों पूछोगे, बट पूछ सकते थे कब, जब वेबिनार चल रहा था। सो आई कुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आई कुड हैव आस्क्ड दिस डाउट। आई कैन राइट हियर, आई कुड हैव आस्क्ड
दिस डाउट। अब एक और आता है वुड हैव का यूज कैसे होगा, अगर मैं डाउट पूछता राइट तो मैं वीडियो बना लेता राइट। अब इसका मैंने तरीका क्या बताया था आपको, दो तरीके से बताया था। इफ आई हैड आस्क्ड दिस डाउट आई वुड हैव मेड वीडियो, या फिर अगर आप क्वेश्चन बनाते कैसे बना सकते थे, मैंने आपको क्या बताया, अच्छे जो स्पीकर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, फिर आप देखोगे अच्छे इंटरव्यू सुनोगे, दे मेक सेंटेंसेस विद द हेड। हैड आई आस्क्ड दिस डाउट I would have made video. सेंटेंस बन गया। इट इज प्रिटी सिंपल। इन सब चीजों के, अब ये सेंटेंस मैंने कैसे बताया, ऐसे ही बस आपसे बातचीत करते करते लगा कि मुझे ये एग्जांपल लेना चाहिए, सो आई टू दिस एग्जांपल। आप अपने ऊपर कुछ भी ले सकते हो एग्जांपल, और पुराने एग्जांपल्स में डाउट आता है तो परसों के लेक्चर्स में आप पूरा पढ़ोगे, उसमें हम लोगों ने खूब सारे एग्जांपल लिए हैं। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। सपोज कीजिए आपने कुछ, हम लोग एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ से रिलेटेड लेते हैं एग्जांपल। लेट मी थिंक। प्लीज टेल मी योर प्रोफेशन। आप अपना प्रोफेशन टाइप कीजिए तो मैं आपको और एग्जांपल दे दूंगा। प्लीज टाइप योर प्रोफेशन। व्हाट्स योर प्रोफेशन? ओके सर, राइटिंग में तो याद आते हैं लेकिन इसको स्पीकिंग में कंफ्यूजन। सर अगर राइटिंग में याद, आपको राइटिंग में ये चीज आ गया ना, अब इस चीज को आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। आप लोग ये मत सोचो कि राइटिंग में याद आ जाता है। राइटिंग में अगर आपको याद हो गया ना कि शुड हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म लगता है, तो स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब कैसे आएगा, आप दिन में आप 10 बार ये चीजें सोचते हो, आई शुड हैव डन दिस थिंग, आई शुड हैव बॉट दिस थिंग, आई शुड हैव टॉक्ड टू हिम, आई शुड हैव फॉलोड जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, दो यू आर फॉलोइंग, बट स्टिल हम लोगों ने एग्जांपल लिए थे, ही शुड हैव, राइट, ही शुड हैव कॉल्ड मी, उसने कॉल नहीं किया। ठीक है, कितनी खराब बात है, आज मेरा बर्थडे था, उसको कॉल करना चाहिए था। अब ये दिमाग में ये थॉट नहीं आना चाहिए था, कॉल करना चाहिए था। रियलाइज करो, टुडे इज योर बर्थडे, राइट, ही और शी डिडंट कॉल यू, तुरंत एक वेव आएगा, क्या आएगा, ही शुड हैव कॉल्ड मी, डन। ऐसे ही बोलते वक्त आपके सेंटेंसेस कंटिन्यू निकलेंगे। ओके, एनी अदर डाउट? इफ यू हैव, दोज हु हैव any doubt please ask me, right, related to communication, जो भी आपका डाउट हो। no doubt, good, still if person is typing so I can wait. Sir, this is my first class, so please how to start studying. Yes, good. So that is what today, if you are those who have joined for the first time, right, पहली बात तो आपको ये करना है कि हम लोग का जो लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, दीज स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स। उसके अंदर हम लोग पुरानी चीजें को वैसे भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आज को आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से पहले शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव बताया था, दैट वाज द प्रीवियस लेक्चर। बट आपको ये मत सोचना और इतना सही है क्या, पुराना लेक्चर आप जब देखोगे यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन देयर। ठीक है, पूरा लेक्चर है। अब आज के लेक्चर में जैसे आज मैंने पढ़ाया, आज व्हाट वी डिस्कस्ड, आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने आज ज्वाइन किया वो सब लोग सुन ले। आज के पॉइंट में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, कंपल्शन के बारे में, वांट के बारे में, हैज टू, हैव टू के बारे में, और दूसरा क्या पढ़ा था, इज टू, आर टू और एम टू। द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंप्लीट टुडेज लेक्चर। ठीक है, आज आप एक वाला लेक्चर कंप्लीट करो, बिकॉज यू आर ज्वाइनिंग लाइव कोर्स। आप अभी लाइव कोर्स में हो ना, ठीक है। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे होते तब तो सिचुएशन दूसरा होता कि आप लोगों की रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही। अभी तो आपकी ऑल्टरनेट डेज में क्लासेस हो रही है ना, तो ऑल्टरनेट डेज के क्लासेस का बेनिफिट आप कैसे ले सकते हो, पहले तो आप पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ो, ठीक है, जो आज का पढ़ाया हुआ है। उसमें जो भी डाउट आता है, डू आस्क मी डे आफ्टर टुमारो, जो आपका परसों का क्लास होगा। उसके बाद सारे के सारे लेक्चर्स आप सीक्वेंस वाइज देखना शुरू करो। डोंट वॉच लेक्चर 1 2 3 अभी मत देखना, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं बताया। बिकॉज बट आई नो यू पर्सनली कि आपको पब्लिक स्पीकर बनना है, आपको एंकर बनना है। सो उन लेक्चर्स को क्या कर सकते हो कि जो लेक्चर 1 2 3 है उनको आप आधे आधे घंटे का देखो सर, ठीक है, आधे घंटे का भी, या फिर 15 या 20 मिनट का देख लो, ठीक है, 15-20 मिनट का देख के बंद कर दो। उसके बाद जो लेक्चर 4 है, लेक्चर 4 5 6 उनको आप कंटिन्यू देखो,
ठीक है। लेक्चर 1 2 3 को मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर मैंने बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया है काफी चीजें, कि कैसे आपको जेस्चर कैसे रखने हैं, पोस्चर कैसे रखना है, वो आपके लिए हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ एंकरिंग। तो बॉडी लैंग्वेज के बारे में सर वही वाला पार्ट है? नहीं, बॉडी लैंग्वेज के बारे में मैं और भी पढ़ाऊंगा, तो वो चीजें हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में कंटिन्यू देखेंगे। बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लेक्चर 4, जिसमें हम लोगों ने बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाया है। इफ इट इज क्लियर प्लीज टाइप यस and start making videos. Good. Right? Okay, fair enough. So please, I am putting in so much efforts, right? This is not because it is not my, very wish or want or desire. I have to, right? I'm not doing any charity for you कि मैं बहुत extra effort डाल रहा हूँ. No, I have to do. But I need the same expectations. I need the same result from you guys as well. Start making efforts. जितना आप करते जाओगे, it is just simply like a sugar syrup. ठीक है, ये सिंपल एक शुगर सिरप है. The more you add जैगरी और शुगर, जितना आप इसके अंदर गुड़ डालते जाओगे उतना ही it becomes sweeter. तो आप इतनी मेहनत करते जाओ. Don't quit. Quit तो करना ही नहीं है. You have already taken decision. आपकी जंग शुरू हो ही चुकी है. Start making videos. ठीक है, घर पे डिस्कस करो. इफ यू डोंट फाइंड एनी पार्टनर, नो नीड टू वरी अबाउट दैट. क्रिएट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मेक सेंटेंसेस एंड स्पीक आउट. योर जॉब इज डन. राइट. राइटिंग के पार्ट में क्या आता है? यू कुड यूज व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक पे अपना पोस्ट डालते जाओ. स्टार्ट राइटिंग कंटेंट. ठीक है, आपका पूरा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा. अपना खुद का वॉइस रिकॉर्ड सुनो, उसको सुनो बार बार. ओके, दिस इज द प्लेस. ओके, यहाँ पे मेरी ये गलती हुई. आई शुड हैव स्पोकन इन दिस वे. लो, यूज हो गया. आई शुड हैव स्पोकन. क्यों? अब तो बन गया ना वॉइस रिकॉर्ड, उसको तो इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते. वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ओनली लिसनिंग. हाउ टू मेक वीडियोस? वेरी सिंपल. ओपन योर सेल फोन कैमरा ओपन करो. ठीक है, मेक वीडियोस. द फर्स्ट वीडियो व्हाट यू कैन मेक योर इंट्रोडक्शन पार्ट. यू कैन स्पीक अबाउट योर सिटी. आप कुछ भी बोल सकते हो. स्टार्ट मेकिंग 20 और 15 और 20 वीडियो. देन आई विल गिव यू टॉपिक्स. राइट. शुरुआत में आप कंफर्टेबली अपने टॉपिक्स ले लो, उसके बाद हम लोग टॉपिक्स देना शुरू करेंगे, क्योंकि पहले सेंटेंस फॉर्मेशन जरूरी है. ओके. Can you recommend any book for beginner? If you're talking about the book in terms of speaking English, कोई बुक नहीं है. राइटिंग के लिए कोई बुक नहीं है. यही है सारा का सारा, सारी स्लाइड्स. डोंट गो. राइट. एंड नोबडी इज बिगिनर. ठीक है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो. इन सब चीजों को आप बुक पढ़ोगे. बुक पढ़ने के लिए आपने सिर्फ कोर्स ज्वाइन किया है. ठीक है, बुक के लिए आपको कोई जरूरत नहीं है. आप कंटिन्यू इन लेक्चर्स को पढ़ो. कितना पढ़ोगे? बुक्स तो आप इतने सालों से पढ़ते हुए आए हो ना. राइट. इफ you're talking about some novel और वैसी बुक, ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो? जस्ट डीएम मी. आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना और अपना प्रोफेशन बता देना. देन आई विल रेकमेंड यू बुक्स. आप किस में हो? आप ट्रेनिंग के अंदर हो, आप एजुकेशन सेक्टर में हो, आप होम मेकर हो, आप किसी जॉब में क्या कर रहे हो, या फिर जो भी हो आपका, आप मुझे एक बार लाइन लिख के दे देना. और व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आप क्या बनना चाहते हो. आई विल रेकमेंड यू बुक्स देयर. ओके, ग्रेट. बट इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश थ्रू बुक्स, प्लीज डोंट. ठीक है, कोई बुक की जरूरत नहीं है. कोई ऐसा कोर्स करने की जरूरत नहीं जो बेसिक सिखाएगा. ठीक है, सारी चीजें बेसिक से हम लोग वर्क करेंगे. ठीक है, जस्ट गो टू द प्रीवियस रिकॉर्डिंग एंड यू विल गेट टू नो. राइट. कोई एडवांस, बिगिनर और ऐसी चीजें, इंटरमीडिएट कुछ नहीं होता. एंड डोंट बिलीव इन सच बुक्स. ठीक है, गुड. सो आई एम एंडिंग दिस वेबिनार. बट स्टिल इफ यू हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन, आप वेबिनार के एंड में आपको कुछ याद आता है, you can ask me day after tomorrow in the class. Okay, it was pleasure talking to you, all of you. Right, I hope you enjoyed. Good night.